Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace and blessings be upon everyone here. Today's session is going to be in English. I am going to speak about a couple of things as they relate to DevOps, SysOps, Cloud Ops. And this is one of the common questions that I receive all the time, pretty much. I want to be, I want to go in artificial intelligence. I want to become a data scientist. I want to become a blockchain engineer. I want to become a cybersecurity specialist or offensive. I want to make my career as offensive pen tester, one of the poorest choices, I would say. And I want to pursue something in SCADA. I mean, there's a lot of I want to, right? So one of the common themes here is I want to do this or I want to do that. And in today's session, I'm going to mention what is the key, what are the key things that you have to follow in order to pursue whatever career you want to do. I mean, people use this word, I don't want to become jack of all, master of none. No, that is not the case. The key thing is like, no matter what subject you want to pursue, and I'm going to mention those things here today, no matter what you want to do, the pathway goes through basically DevOps and SysOps. And I'm going to prove that today, that if you have this skill, then this will help you go further and go deeper into whatever you are pursuing, right? And where the jobs are, where the jobs are. So this talk is going to be dubbed in Japanese and Russian, and it's already in English and many other languages. So let's start by, introducing myself. So my name is Mohammed Faisal. I'm one of the founders of An-Nafe. An-Nafe is a company that was established for one thing and one thing alone, was to make education economical and cheaper and available to everyone, wherever they are from, wherever they're living, whatever languages they speak, whatever the case is, right? Their religion, caste, color, creed, this is not something that we follow. But yes, the company is established by Muslims, primarily coming from MIT, Stanford, and some of the other top institutions. They have ample amount of experience working as a CISO, as a CIO. I myself have been working as a CISO, as a CIO, as a CTO in Europe and in North America. That has been my primary experience. And I've been leading this firm since 2018, June. So in today's topic, we're going to cover many things as they relate to cloud, DevOps, and some of these other things. So that's where we're going to start from. So let me open a couple of things. But as I said, this talk will be recorded in multiple languages. After the talk, I will take some questions. And those will be in whatever language you speak. If I can speak that language or if I can understand, I will respond back, right? But there are a couple of things I would like to mention and I would like to highlight and explain to you why DevOps and SysOps is important for you. I mean, why? What is the reason? Why? I mean, the key question is, what do you have to do? Why do you have to do, right? So that's something that I need to build the foundation on, right? And so we're going to cover that area. So let's jump in. Globally, if we look into all the things, so let me open one of the job portals I have, which is LinkedIn, one of the best job portals you can find. So let's check that. And also, before we proceed, I would like to bring your attention to one of the key event that we will be having soon. I would say on 15th of January, there's a big event coming up, right? So if you can join in, do join in that event, because this is going to help you significantly in terms of what you want to do or what you want to pursue.
Let me go on YouTube as well and open that. I just want to show you a couple of things. And then Twitter as well. So before we proceed, let's do that. Okay. All right. So I'm going to share a couple of things that you have to, that if you want to get some information, you can do that. The first thing is you can follow us on YouTube. We do go live from time to time. Pretty much all the videos are live. You can see the live videos and you can follow them and you can pursue them. You can ask questions, but the best place to ask questions is directly on the website. So if you have any questions, go to the website directly and you can open a WhatsApp or Facebook Messenger icon and you can ask questions there. Basically the agents are sitting there and they may be able to answer back your questions. If not, then you can join this session live and I will be able to answer the questions as well. The other thing is, like on the LinkedIn, I'm going to search some jobs, cloud, I'm going to write down. So let's do that. So I'm going to write down cloud and I'm going to write down worldwide, right? So that's what I'm going to do. Just to make sure like we cover all the key bases and we cover all the key things. So you can see globally, this number changes, it's a very volatile number. This number changes to 605,000, almost 606,000 jobs available around the world, right? If you search on Indeed Global, that's one of the job portals that you can see. There's a lot of, there are a lot of jobs over here worldwide. And I'm going to pick up some countries like there's India, there's Australia, right? Brazil, Canada, USA. For that, I think UK, I have to type in Indeed USA here separately so that it can take me over there. So let's go there. Because I'm in Canada, so sometimes it takes me over there, right? And I'm just going to type in cloud, right? So cloud. So it's just showing me 145,000 jobs. Now, no matter what you do, whatever you work, cloud is part of your life. You can't leave the cloud. The cloud is already upon you. I mean, on this planet or any other solar system, or any other planets, or any other solar system, wherever you go, cloud is there. There will be clouds, or there will be something like an atmosphere, right? That is where everything resides. Pretty much like all the key gases, the key elements, I would say. So you can see cloud is there. We type in India, we type in cloud, we see 51,000 jobs. We go here. This is Australia, we type in cloud and we see 8,000 jobs, right? We go here in Brazil, we type in cloud, again, Portuguese is very limited, and we see 7,400 jobs. We can convert this into English, data engineer cloud, so on and so forth. We type in here in Canada, we type in cloud and we see 11,000 jobs, right? We go here in UK, we type in cloud, again, big, huge economy, 27,000 jobs, right? And you can see they all have common elements, DevOps engineer, research engineer, infrastructure analyst, database administrator, even for machine learning, deep learning, AI, every single thing is in the cloud. So cloud is the main, I would say, the main common element. Right? So if you want to go in AI, for example, or if you want to go into, for any data science guys, for example, they need to have a very thorough know-how of code repositories. They need to know the processes to commit the codes. In most cases, despite using code repositories, data scientists, they lack the expertise to automate integrations.
and they don't know. So if you just want to become like a data scientist, even if you have a PhD, you will struggle to find a job because you will be useless if you don't know how to use the cloud, because all the data science tools and the artificial intelligence tools, they reside in the cloud. So that's the first thing you need to understand. It's not me. Go and search online. You will be able to see. You'll be able to see. What is the relationship, between DevOps and SysOps and cloud with AI? AI, all the tools, everything, they're all running in the cloud. So if you don't know how to use the cloud, you can't use those tools per se. AI is not what is being taught at the universities. It's very different. And all the solutions and all the cloud providers, they're providing these AI-based solutions. You need to understand and know how to be proficient in DevOps and SysOps. If you want to work in cybersecurity, again, the same element. The infrastructure is all in the cloud. If you want to develop applications, Dockers, Kubernetes, it's all in the cloud. Whether those are blockchain applications, AI applications, big data applications, data science applications, cybersecurity applications, AR, VR, augmented reality, virtual reality, every single thing basically has an intersection with the cloud. So the cloud is basically the main fabric. It is the main fabric through which everything is connected. If you don't know how to use that, you can't work anywhere per se. Now, one of the key things you have to understand is like when you are studying something, the goal is to secure the job immediately, right? Whether like it is globally or internationally, whatever the case is. Globally or nationally, globally means like you can work from home for a global company. Internationally, I would say you can work from, you can move to another country, you go there and you work there. Remote is you are working remotely from your own country for other companies or whatever the case is for a company, so on and so forth, right? So all these key elements in all of this scenario, the key element is cloud, because your working environment, every single thing will be in the cloud. So if you don't understand the cloud, you can't do anything. You cannot do anything. There will be a session for this in coming 15th of January. And that session is going to be, if you follow our, LinkedIn page, you'll be able to see. This is the masterclass on jobs in emerging technologies conducted by Hamad Siddiqui. Hamad Siddiqui is one of the renowned person. There are only limited global coaches of LinkedIn. I think he's number 3rd or 4th. Globally, he's very well recognized. So you'll be doing a class from Canada live, and that class will then be recorded into multiple languages and will be presented all over the world as well, right? So do attend this masterclass, because if you attended, 10 lucky participants will have a one-on-one session, coaching session with Hamad Siddiqui, right? So that's another benefit. So we have now established that the most important element in all of this is the cloud, right? So now we have to understand what exactly are we learning, right? So let's jump into that. So what we're teaching is, we're teaching you CAT. In CAT, if you buy or acquire the DevOps advancement track, right? This is what we have. You go to the website, go on this. There is a 8% discount running right now, right? So if I have to do this, you'll be able to see. Let me go back, renew this. Should be able to see that. So there is an 8% discount. The discount code is active. So you can go here, tracks. And this is the track that you have to follow. DevOps, there's a blockchain and everything as well, DevOps and AI. You can see the reason I added DevOps, SysOps and AI, DevOps, SysOps and blockchain, DevOps and artificial intelligence is, that's the key element you need to follow. Because if you know this, everything else becomes very, very easy. So this is one of the tracks, DevOps, SysOps. So what exactly are you learning? What is happening to you? What are you learning? What are you going through? All of those things, right?
So one of the key things you are doing is, so if I open here, you are going through a lot of courses. And cumulatively, I would say around 2,000 hours. That's a lot of hours, right? If I combine all of these things. But at the same time, you're going through, Dockers, Bash, Python automations, Jenkins, Ansible, Kubernetes, one of the key aspects. If you have zero experience, entry job in Kubernetes is above $100,000. If I just search online here and just type in, Kubernetes entry salary, right? Let's look at the salary. The entry level Kubernetes engineer, 1 to 3 years of experience, earn an average salary of this much. Right now, one of the things is when you're studying with us, you can apply for the key position, which is internship. So you start doing your internship immediately from day one. You start doing that, and that helps you, build up your resume. That's something that we offer. But at the same time, you learn all of these things. Now, these are the things that help you build the understanding you need to be successful. And this is where you learn all the key industries. So once you learn the industries, at the same time, you're building up your skill set for developing all the applications and tools and how to use them. And the last thing is, then you're able to work on all of these infrastructure labs and everything. And this is what we provide you in the DevOps advancement track. In the SysOps, we give you access to the whole infrastructure. What you have to learn, how the infrastructure needs to be maintained in AWS. Azure is coming next. So this is what you learn. All the things that you can imagine. How to build up the whole infrastructure from ground up, the applications. So then you become a person who understand not only the applications part, but also the infrastructure part and the business part. So the business lingo. You learn everything in the CAT, cybersecurity, risk management, governance, IT governance, all of these things. But then you learn the automation parts, the cloud and everything. And then the third thing you do is basically the infrastructure part. So you manage all those things as well. So now when we are now looking for jobs, now let's see what kind of jobs are out there, right? So there are some very good, articles, where they talk about why data scientists needs to know DevOps. This is the philosophy that you need to know. Or why cybersecurity guys needs to know DevOps, right? So let me search something for you and show you. And there's so many examples I can show you, In this world, one of the key things that you have to understand is compliance and governance can never be outsourced, or doesn't go away. If it can be outsourced, it doesn't go away. You still have to manage it. So if we type in why DevOps is important for cybersecurity, DevOps helps bind the security and engineering departments together. It's the binding force. It's the glue that binds, the operation guys and the security guys together, which, by the way, nowadays is known as DevSecOps, right? If you type in DevOps for cloud engineers, right, you will see, cloud projects are all becoming better defined. They include application development, speed to delivery to meet the needs of the business units. Every single thing relies on DevOps, right? If you type in, artificial intelligence, you will see the same thing. Go and read it, right? AI is going to be part of DevOps. AI will help engineers, in terms of becoming better engineers over time, but this is going to take some time. DevOps for, blockchain guys, type in and you will see, right? This is one of the key things that you cannot take out. So as I said, cloud, SysOps, DevOps are the key elements that you cannot take out, no matter what you do.
Now, the biggest benefit that we offer is if you do this course, you get, which is a 12 months course, you get EduCall level 6 certification. Level 6 means on the RQF scale. If I have to show you, on the RQF scale, which is like the qualifications that are recognized by the UK government, right? You now also have the opportunity to go outside of your country. You can go outside of your country. And you can take admission basically in a master's, with 2 years of exemption into a bachelor's program. You can do so. You can do that now. And that is something we are going through right now, the accreditation process, right? So there are multiple standards, we were trying to map our things with basically SCQF, but now then we said, okay, we can just follow the Northern England. So we're doing that. All of these things, they are all aligned together. So level 6 means you have completed your bachelor's degrees with honors. This is what we are getting, up right now. That means you can take admission basically in a master's program directly. That's way better than, level 9 that I was trying to pitch previously, right? So this is another big thing. So you can take admission in your master's program. You can finish this, our DevOps and SysOps in 6 months' time, 9 months' time. It has to be done in 12 months' time, by the way, because if you don't, you pay the examination fee again, which is 300 pounds. That will be charged separately. We can't do anything about that. You have to pay that fee separately. But that is what we're trying to do right now. So that helps you solidify, your qualifications, your experiences. And that's what we are trying to do right now. So SysOps and DevOps gives you that. And then if you do 3 tracks, you get to have the equivalency of masters. You can directly, that is one of the things that you should do, so on and so forth, right? But level 6 is something we will take them admission in bachelor's. If the person already has the experience, then he can take he's already working in the industry, we can get them admitted in masters. He doesn't have to do that, right? It's all up to him what he wants to do. There are pros and cons of doing both, because if you do a bachelor's program in UK, you get a longer work permit, I believe, right? If you do something like that, I have to review that. There are certain things. So these are one of the things you have to notice and you have to pay attention to. So this program not only enables you to work in the industry, but also opens door for you to go outside of your country as well. And if you don't want to go, that's fine. You can work from home wherever you are, right? So this is the DevOps and SCAT, the SysOps Cloud Advancement track. And as you can see, when you go for the interview, you have all the defensive part figured out. You have all the, security part figured out. You have all the basically virtualization infrastructure cloud figured out. That's one of the things you have to understand. You have all the standards figured out. Containers, programming, automation, everything is there. Processes, concepts, maintenance, backups. There's nothing else outside of this organization where you can't work. Everything is there. So that is the power of DevOps. Wherever you are in the world, Brazil, China, India, Pakistan, Japan, USA, North America, like in Canada or USA, or in UK, in European countries, this is one of the pathways for you to secure a job in 3 to 6 months' time if you study them together. This was the topic that I want to discuss today. I am going to discuss topics based on our own accredited, tracks. One of the things that we're doing right now is we are going through the accreditation process to become a British university. And the first step is to become an accredited British higher education college. And after that, we will become a British university. And it's a gradual progression we have to go through, right? So you can learn these tracks, you can expand yourself, expand your horizon, and be able to work within the industry in 3 to 6 months' time. Because we provide you we are not only teaching you, giving you hands-on labs, but also giving you the experience you need, the internship you want,
or you need to have in order to secure these next level jobs. This market itself is at least $3 trillion globally, just in North America and Europe combined, right? So if you factor in the global market, you can throw in another $1 trillion as well, right? So roughly it's $3 to $4 trillion. This is one of the biggest things that you can, follow the track. If you have any questions, you can go online, open a ticket. Our team is there. They can help you out. Go to, WhatsApp. WhatsApp is the best way of communicating with us. Click on it. It will open this and continue to chat. And that's our Canadian number. We are here. We will answer all of your questions. I will take a pause here now. If anyone has any questions, they can always go back on our website and ask. But I'm going to open the floor now to ask questions. Again, this lecture will be recorded in multiple languages. It'll be sent all over the world, shared all over the world. And I'm always available to answer back if you have any questions. So I'm going to take a pause here, and then I'm going to open the floor to ask some questions. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Sabse pehle sawal lo bhai. I'm here to ask questions. I'm here to answer the questions. Whoever has it, please, now is the time. Yes, SS, go ahead. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं दो बात आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत खराब आ रही है। हाँ सर, अब आ रही? जी दोबारा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, अब मैं क्लियर हूँ? जी क्लियर है, बोलिए। ठीक है। अच्छा सर, मेरे सवाल ये थे कि मैं आपका डेवऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सितंबर, बट मुझे अभी तक ना न्यू एलएमएस नहीं मिला है। लेकिन लास्ट मंथ उनकी एक ईमेल आई थी और उसमें कुछ शो नहीं हो रहा है अंदर, और यूज़र नेम भी मेरा नहीं है जो पोर्टल में शो हो रहा है, तो उस वजह से मेरी उसका हल निकाल दिया है। उस पोर्टल के अंदर मैं उसका ऐलान करने वाला हूँ। कल उसका ऐलान होगा, फ्राइडे को ऑफिशियली। वो जो नया एलएमएस है उसके अंदर आप सिर्फ लैब्स करेंगे, और जो पुराना हमारा एलएमएस है उसके अंदर सारी वीडियोस चल रही हैं, सब कुछ है। आप उसी में आपको सारे कोर्सेज खोल दिए जाएंगे। वहाँ एक बस इशू है वीडियो लीक्स का, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई नाजायज तरीके से डाउनलोड करता है तो वो फिर अपना बंदोबस्त करे, बहुत अच्छे अमाल करे, ताकि वो फिर जमा करा सके मुझे क़यामत के दिन। ठीक है, क्योंकि मुझे ना 9 मंथ्स चाहिए और मैं यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन पे लगा हुआ। अगर मैं बैठ के सारे काम करता रहूंगा ना, इट विल टेक टाइम। क्योंकि मैंने कल 2 बंदों को निकाला है कंपनी से, ठीक है, बिकॉज उसमें हमें इश्यूज आ रहे हैं। सो आई नीड 6 to 9 months टू फिक्स दैट। बट आप पुराने पोर्टल में सारी वीडियोस कर सकेंगे, सारे असाइनमेंट्स कर सकेंगे, एग्जाम्स दे सकेंगे, क्विज़ेस कर सकेंगे, वहाँ हर चीज़ चलती है, कोई मसला नहीं होता। लैब्स के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, बल्कि मैं लैब का बटन उसमें अंदर लेके जा रहा हूँ, वहीं पर अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। आप फ्राइडे तक वेट करें, आप सब लोगों को ईमेल्स जाना शुरू हो जाएंगी। जिसने जो पेमेंट की थी उसको उसके हिसाब से एक्सेस दे दिया जाएगा, और उसको वहाँ पर लैब्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। लैब्स के लिए वो नए पोर्टल में जाएगा, क्योंकि लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर उधर ही है, और पुराने पोर्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर अजोर पे है, नए वाले का AWS के ऊपर है। थोड़ा सा मसला है, बट थिंग्स विल कीप ऑन रनिंग। सो आपको मिल जाएंगी चीजें, सो डोंट वरी। सर मेरा नाम शामिर है। कुछ स्टूडेंट्स को न्यू एलएमएस पे वीडियोस मेल शो हो रही हैं, तो वो भी रिवोक होके पुराने पोर्टल पे चले जाएंगे? हाँ, सबको हम उधर ले जाएंगे। मैं सबका बंद करूंगा। आई नीड टाइम, बिकॉज मैं जो ना अभी यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मेरा बताओ मुझे। एक्रेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट 2 काम है मेरे। तुम्हें एक्सपीरियंस देना कि तुम जाओ, पढ़ाई शुरू करो, अपनी पढ़ाई काम शुरू करो। अगर तुमने एनुअल लिया हुआ है तो तुम जाके इंटर्नशिप के लिए फॉरेन से अप्लाई करो। रात को मेरे साथ मीटिंग्स में बैठो, दिन में मीटिंग्स में बैठो, काम करो। वहाँ पर तुम्हें काम मिलेगा, तुम मुझे वहाँ देखोगे काम पे। मैं इसी तरह इंग्लिश में बात करके तुम लोग से काम करवा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को काम दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, और उसके बाद तुम लोग उस पर काम करोगे। ठीक है ना, और सारे अपने कोर्सेज भी तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे होगे। तुम लोग उस वक्त काम दिया जाएगा जब तुम लोग फिक्स नंबर ऑफ कोर्सेज खत्म कर लोगे। अगर उससे पहले तुमको आना है, तुम आके एनुअल पे हो, तुमने बेशक शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही जब तुम अप्लाई करोगे तुम्हें जॉब ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, तुम इंटर्नशिप करोगे, सब कुछ करोगे। वो तुम्हारे सारा एक्सपीरियंस है ना, कि HR की पॉलिसीज क्या होती हैं, कैसे साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So that is my number 1 priority. Second priority, accreditation, because accreditation opens the doors for you. इसको पढ़ने से बच्चों की जॉब हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब का मसला नहीं है। Accreditation का फायदा ये कि that opens doors for you to go outside.
दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है। अच्छा ये सर। जो एजुकॉल का बंदा है ना, गोरा, ये अब से 1 महीने के बाद मेरे साथ लाइव बैठेगा सेशन। मैं इसको बिठाऊंगा और बुलाऊंगा सबको, और सबको बताऊंगा देखो भाई बात करो उससे, ठीक है ना। तो दैट इज कमिंग एज वेल। सो एक्रेडिटेशन मेरा नंबर 1 कंसर्न है। तुम्हें जो लैब्स मिलनी है, गनीमा लैब सारी जो थी वो कंटेनर्स में आ गई, तुम्हें क्लाउड का एक्सेस मिल जाएगा, तुम जाके लैब्स कर सकते हो, ब्राउजर में खोल सकते हो। लेकिन वो वीडियोस की जगह तुम, वो जो है ना उसमें मसला हो रहा है हमें, ठीक है ना। इवन तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है वो सारा का सारा वो है, वही नेटफ्लिक्स के, वही जो नेटफ्लिक्स यूज करता है वही हम यूज कर रहे हैं, वीओडी सब कुछ, वीडियो ऑन डिमांड सब कुछ, AWS का। बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट नीड्स टू बी फिक्स विद इन द एप्लीकेशन, राइट। इट्स अ बेटा पोर्टल ना, लिखा हुआ है ना बेटा है, बेटा पोर्टल है, तो आपको पुराने पोर्टल पे ले जाएंगे। पुराना पोर्टल बिल्कुल स्टेबलाइज चल रहा है, सब कुछ है, एवरीथिंग वहां पर है, कोर्सेज भी आपके रखे हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स भी आपको मिलेंगे, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ वहां से कर सकेंगे। यू कैन विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है। ठीक। दैट इज कमिंग। मैं इसको सैटरडे फ्राइडे या सैटरडे को अनाउंस करूँगा। सर मैंने भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने ईमेल्स भी की थी टू द सपोर्ट और जो भी है। ये मैंने और खोला कस नहीं, वी हैवंट ओपन इट। जब खुलेगा ठीक। तुम्हें फॉर्म नजर आएगा, तुम पोर्टल में जाओगे, फॉर्म भरोगे, तुम्हारे पीछे नाम चेक करेंगे तुम्हारा कब है, उसके बाद तुम्हें HR कॉन्ट्रैक्ट भेज देगी, तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, देन यू विल फॉलो द प्रोसेस। अभी नहीं, सब्र करो। सो ठीक। और फिर सर दूसरी बात ये थी, एक दफ़ा आपने कहा था कि अगर एक दफ़ा आपके एक्रेडिट हो जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उन वो क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं ये कोर्सेज पढ़ के कुछ ना कुछ। बिल्कुल क्योंकि ये, तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा? मैं क्योंकि यूरोप में होता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं कुछ कोर्सेज आपके पढ़ लेता हूँ तो क्या मुझे क्रेडिट आवर्स काउंट करवा सकता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल करवा सकते हो। यूरोप के अंदर ना ये वाला फ्रेमवर्क चलता है, इसे कहते हैं यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो अगर तुम डेवऑप्स कर रहे हो तो तुम्हें जो है ना डेवऑप्स पे ये मिलेगा, ठीक है। खाली डेवऑप्स कर रहे हो तो तुम्हें लेवल 5 मिलेगी, ठीक है ना, जो अभी हम दे रहे हैं। लेवल 5 का मतलब है, अब ये यूनिवर्सिटी के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो लेवल 5 का मतलब है यूरोपियन स्टैंडर्ड में ये रहा, RQF के मुताबिक लेवल 5 और 4 सबके एक ही स्टैंडर्ड है। देखो ये है RQF का स्टैंडर्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। यूरोप के अंदर सब जगह यूरोपियन क्वालिफिकेशन EQF चलता है, तुम अपनी इसमें चेक करो। हर यूनिवर्सिटी EQF के हिसाब से कोर्सेज बनाती है। हम लोग यूके में 2 कर रहे हैं, SEQF और RQF। यूके में 4 फ्रेमवर्क्स हैं, स्कॉटलैंड का अलग है, नॉर्दर्न इंग्लैंड का अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, ठीक है ना। वी आर फॉलोइंग दिस वन एंड दिस वन, बट दे आर ऑल द सेम। इसका लेवल 6 है, तो इसका यहाँ लेवल 9 और 10 कहलाता है, लेवल 6 यहाँ पर है। तो अगर तुम हम्म। डेवलप कर रहे हो तुम्हें लेवल 5 का मिलेगा। लेवल 5 यहाँ पर HND के बराबर है, दिस इज RQF लेवल 5। तो तुम जो है ना ये क्वालिफिकेशंस मतलब के कर सकते हो, जो कि कहलाई जाती है बैचलर्स के बराबर, ऑर्डिनरी बैचलर्स। उसमें तुम जो कोर्सेज जो तुम्हारे हैं, जो तुम उसमें से क्लेम कर सकते हो, तुम उनसे जाके बात कर सकते हो, और यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बोलो मैंने लेवल 5 का कर लिया है तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन RQF में लेवल 6 होता है बैचलर्स डिग्री के अंदर। तो तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्या मिल सकता है, ये तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी की अपनी मर्जी है, वो इवेल्युएशन करेंगे उसकी कि उनको कैसे इवेल्युएशन करनी है, क्या करनी है। दैट इज नॉट समथिंग विच इज इन माई हैंड। व्हाट ठीक इज है। इन माई हैंड इज टू गेट दिस थिंग एक्रेडिटेड, ठीक है ना। तो वो मैं कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि यूरोपियंस के लिए यहाँ पर ये फ्रेमवर्क है जो वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। EQF कहाँ, किस शहर किस मुल्क में हो तुम? फिनलैंड में सर। सो EQF लिखो तुम, फ्रेमवर्क, ठीक है ना, फिनिश यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इनका उन्होंने अपना बनाया हुआ है, उसके हिसाब से तुम चेक करो, ठीक है ना। EQF जो है उन्होंने AQF बनाया हुआ है, दे ऑल फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। तो जाके चेक करो कि इसका इसके मुताबिक उसकी क्या रेटिंग है, क्या रैंकिंग है, ठीक है। ठीक। एंड यू विल बी एबल टू सी दैट इज द बेस्ट। एंड बोलिए। सर एक और चीज़ थी कि इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का ये भी क्राइटेरिया होता है कि आप अगर पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ना ये क्रेडिट आवर्स काउंट करते हैं, क्योंकि आप अपने आवर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में दे रहे हैं। तो इनका कुछ क्राइटेरिया होता है इंटर्नशिप का। फॉर एग्जांपल मेरी डाटा साइंस की डिग्री है, तो एक क्राइटेरिया है कि आपकी
डिग्री में कोडिंग वगैरह होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप एनालिटिक्स या पावर बीआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं आपकी इंटर्नशिप में आता हूँ तो अगर क्या मुझे रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिल सकता है ताकि मैं वो भी क्रेडिट आवर काउंट करवा सकूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम जो कोर्सेज पढ़ रहे हो, बोलो मैंने इसमें ये सारे काम किया, क्यूबरनेटिस पे काम किया, डेवऑप्स में काम किया, पाइथन ऑटोमेशन पे काम किया, बैश पे काम किया, मैंने ये सारे काम किए। ठीक है, बिल्कुल। लड़कों ने मुझसे लेटर लिखवाए हैं, एक्रेडिटेशन से पहले ही उनको क्रेडिट आवर्स मिल गए थे। तो सो तुम्हारे ठीक है लिए सर। तो नहीं होना चाहिए एक्रेडिटेशन के बाद, दैट बिकम्स वेरी इजियर। ठीक है सर, तो मैंने उनको ये भी बताया कि मैं एज ए इंटर्नशिप भी करूँगा यहाँ पे। मैंने पूछा था तो वो बोले थे आप अपनी कंपनी का नाम बताएं प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दें ताकि हम प्रोसेस सारा स्टार्ट कर दें। तो मैं गनीमा का ही नाम दे दूं और नहीं, गनीमा का नाम कॉन्टैक्ट? नहीं होगा, नहीं नहीं, गनीमा का नाम नहीं होगा, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट कंपनी यू हैव टू यूज। ठीक है सर। ठीक है ना, यू तो हैव। वो इंटर्नशिप। हाँ, nafe.cloud के नाम से वो कंपनी है जो हम लॉन्च करने वाले हैं। व्हेन इट कम्स आउट यू विल बी एबल टू सी। ठीक है, दैट इज वेयर यू विल वर्क। ठीक है ना, इट्स अ क्लाउड कंपनी वेयर यू विल वर्क एंड यू विल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। गनीमा हैज बीन टेकन ओवर बाय nafe.cloud। ठीक ठीक है, है सर। यू विल नो। तो चलो। ठीक है सर, तो जब जैसे स्टार्ट होता है इंटर्नशिप का प्रोसेस मैं अप्लाई कर देता हूँ और उसी के बाद फिर मैं साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करूँगा ताकि वो क्रेडिट आवर्स मेरे काउंट होना स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। जी खालिद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपसे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले सर आपसे बात हुई थी, वही मैंने जो टिकट जनरेट किया था और लेक्चर्स अपडेट्स के हवाले से सिसऑप्स में कैट का स्टूडेंट हूँ सर मैं। और मैसेज भी अभी अब मैंने सर आपको कर दिया है, इससे पहले भी मैसेज किया था। लेकिन सर हमजा से भी मेरी बात हुई थी, किस उन्होंने मुझसे वेरिफिकेशन मांगी, वो दी। उसके बाद सर मैं राब्ता कर रहा हूँ, लेकिन सर हमजा कॉल नहीं उठा रहे हैं। और हमजा, आपसे भी मैं 2 मरतबा लाइव सेशन पे बात कर चुका हूँ सर। एक मिनट सबर, एक मिनट सबर। तुम्हारे साथ मसला क्या था, मुझे बताना जरा मसला। सर मेरे साथ मसला ये है कि सर मैं सिसऑप्स के जो लेक्चर्स हैं ना सर, उसमें मॉड्यूल्स हैं 3, लिनक्स, नेटवर्किंग एंड वो है सर्विसेज। तो सर्विसेज में सर टोटल लेक्चर्स जो हैं 40 हैं और जो शो हो रहे हैं 21 लेक्चर शो हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो और सकता यार, एक मिनट सबर। तो तुम्हारा जरा मुझे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके दो यहाँ पे, मैं अभी देखता हूँ ना, सबर करो। ठीक है, तुम सही है कब, सर, मैं आपको वही रजिस्टर कब हुए थे? मैं आपको ईमेल एड्रेस आपके पर्सनल नंबर पे सर सेंड कर रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ, भेजो भेजो भेजो, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ ठीक। तुम्हारा। तुम पुराने पोर्टल पे हो ना? जी सर। पुराने पोर्टल पे सब चीजें स्टेबलाइज होकर चल रही होती है, मैं अभी अभी देखता हूँ तुम्हारा। ठीक है ना। हारिस सुबैद जी साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वो तुम हैरिस वाले हो, हारिस? जी जी बताइए। बोलो क्या हो। असल भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मैं ना अभी डेवऑप्स का लेने की सोच रहा हूँ कि मेरा कैट का एक्सेस ख़त्म होने वाला है मार्च में ना। तो उसके अंदर जो है अभी मैं न्यू पोर्टल में नहीं है। मैंने अभी सुन लिया आपने जो बोला कि फ्राइडे को आने वाले हैं, तो मैं वेट करूँ उसका जब तक कि मैं एलएमएस में आ जाऊँ, क्योंकि मुझे लैब्स भी तुम्हें करनी है। एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा तुमको, उसी वक्त मिल जाएगा। यू विल गेट द एक्सेस इमीडिएटली। वो नहीं है। तो नया पोर्टल का जो लैब्स है ना, लैब्स उसमें रहेंगी, वीडियोस हम वहां से हटा देंगे, पुराने पोर्टल पे ले जाएंगे वापस। वीडियोस जो है ना वहां पर ज्यादा स्टेबल तरीके से चल रही हैं। ठीक है, जी पुराने पोर्टल पे इस वक्त 19,000 से ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, वो आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नए पोर्टल पे जहां पर 10,000 का थ्रेशोल्ड आया ना, तो वो जो ना अमेजोन की सर्विस हमें तंग कर रही है। ठीक सही है, है। एप्लीकेशन के भी इश्यूज हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। उसको स्केल करना, वो करना बहुत, मतलब कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, हम्म। के लिए जो है ना हम लोग वापस उस पे जाएंगे। पोर्ट लैब्स ये चलती रहेंगी, लैब्स इसी तरह रहेंगी, हम उसके बाद में इसको देखेंगे हमें क्या करना है। अच्छा, मतलब साइड बाय साइड, जैसे मैं एक मॉनिटर स्क्रीन साइड बाय साइड कर सकता हूँ? हाँ, तुमने जो मुझे जॉब का भेजा था, वो जी सिसऑप्स और डेवऑप्स दोनों को मिलाकर है वो, तुमने जी देखा? जी जी जी। तो वो इंटरव्यू है मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ना उसका। हाँ, तो क्योंकि इसमें वो तुमसे क्यूबरनेटिस भी मांग रहे हैं, डॉकर्स भी मांग रहे हैं। ठीक है, चलो। हम्म। ठीक है, उसके बाद तुमसे ना दूसरी चीजें भी मांग रहे हैं, तुम निकल सकते हो और तुम अच्छा काम पकड़ सकते हो। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो तुम्हें होगी वो ये होगी कि मतलब कि ना, तुम्हें सिसऑप्स पे काम आता है कि नहीं आता? सिसऑप्स का मैंने वो कर लिया, इंटेंसिव जो था ना वो मैंने कर लिया, कैट के अंदर वो अवेलेबल है। नहीं नहीं, वो जो बड़ा वाला सिसऑप्स है ना, वो नहीं नहीं, वो नहीं करा मैंने भी। उसमें वो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट मांग रहे हैं, उसमें तुमसे वो सब चीजें जी वो हमने तो नहीं कराई ना उसके अंदर। वो तो सिसऑप्स
जो SysOps and Cloud Advancement ट्रैक की बात कर, नहीं वो नहीं करा मैंने अभी। बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? जी ये है। तो तुम देख लो उसको, तुम उससे बात कर लो एंड ट्राई टू सी। लेकिन अभी अगर तुम जाते हो और तुम उस पर शुरू करते हो तो तुम डॉकर्स वगैरह और क्यूबरनेटीज और ये सब चीजें तो तुम शुरू कर ही सकते। क्यूबरनेटीज तो तुम्हें 10वें महीने मिलेगा, जो मंथली पे आएंगे उनको 10वें महीने मिलेगा क्यूबरनेटीज और सब चीजें ना। अच्छा, और फैसल भाई डेवऑप्स के अंदर मैं देख रहा था उसके अंदर कैट डीप डाइव भी है, तो फेज 2 के अंदर वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा, फेज 2 जो है वो डेवऑप्स का पार्ट ही है वो, या कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो डेवऑप्स के अंदर ही होंगे मेरे, ठीक है ना? जी। कैट के कुछ कोर्सेज, कैट में वहां पर कोर्सेज हैं, फिर कुछ कोर्सेज मेरे वहां पर अलग से होंगे, ठीक है? सही है। और मैं हर इंडस्ट्री के कोर्सेज को उसके हिसाब से उसके अंदर एम्बेड करके और मजीद पढ़ाऊँ। सही है। चले, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं साइन अप करूंगा डेवऑप्स के लिए तो मुझे एलएमएस का मिल जाएगा फौरन से? हाँ, तुम्हें मिल जाएगा एलएमएस, यू विल गेट। सच? हमजा से बात करो, हमजा इज देयर टू हेल्प यू एंड ही विल गेट यू ऑन बोर्ड। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, इंशाल्लाह जी। सर आपको मैंने डिटेल प्रोवाइड कर दिया सर, आपको पर्सनल मैसेज किया सर। ये 569 जो आखिर में आता है ये? जी सर। और सर मेरा अभी ये कोर्स जो एक्सपायर हुआ है अभी 8 को एक्सपायर हुआ था, क्योंकि सर 3 हफ्तों से मैंने ट्राई किया और तो चीजें बिल्कुल हुई नहीं इन लाइन। जस्ट लास्ट मैं तुम्हारा कोर्स खोल के देखूंगा, ठीक है ना? जी सर, जी सर। ठीक है ना? और मैं 21 अगस्त को, तुम 2 अगस्त को आए थे 2021 को, ठीक है ना? तुम्हारी सारी चीजें एक्सपायर हो चुकी हैं जो मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है? और जो तुम्हें कोर्स मिला हुआ है वो मैं कोर्स खोल के देख रहा हूँ, ठीक है ना? उसमें वो जो कोर्स है वो सबके लिए वही कोर्स है, मैं खोल के मुझे पता चल जाएगा अभी। एनीवे मैं देखता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, ठीक है ना? इधर ही रहो। परवेज अली साहब बोलिए। जी परवेज अली साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे जो सवाल पूछना था ना वो तो पहले ही जो है ना आपने जवाब दे दिया था, लेकिन अभी दूसरा ये सवाल है कि मैं केट का स्टूडेंट हूँ, हाफ ईयरली पेमेंट किए, तो इंटर्नशिप के लिए मुझे अभी क्या क्या चीज मेन जो है ना पढ़नी चाहिए लाजमी? वो आपको नजर आएगा जब चीज खुलेगी ना, आपको सब नजर आएगा कि क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं ओल्ड पोर्टल पर सर। हाँ, तो ओल्ड पोर्टल में, नए पोर्टल में, डजेंट मैटर, आपको नजर आ जाएगा, ओल्ड पोर्टल में नजर आएगा आपको, ठीक है? अच्छा। अप्लाई करना है जो भी है, ठीक है ना? सही। अब्दुल गफ्फार साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए अब्दुल गफ्फार साहब। फरीदा बहन बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Yes, I was wondering when is sorry, I'm not able to speak in Urdu. I understand a little bit, but when is the English course available for DevOps? The DevOps English course will be available by this coming Friday. One of the key Okay, inshallah. And is it? Yes, this coming Friday. Where are you from? I'm in Toronto. You're in Toronto. So you can't understand Urdu? I can understand a little bit, but sometimes, you know, I don't understand some of the words. So where are you originally from? From Pakistan or from Trinidad? Where are you from? Originally from India. My parents are from India, but I grew up in Africa. Okay. Because that's why we didn't get a chance to learn Urdu. Yeah, there are lots of people from Trinidad, from Guyana. They look like us, like Pakistanis, but they can't speak Urdu, right? That's right. Yes. Okay. I understand, like when you're speaking, I can understand, but I mean, to take a course, you know, as advanced as IT, I don't think I can manage to learn in Urdu. Yes. Well, I agree with that. But the course is going to be, if I have to show you the course is going to be recorded by using artificial intelligence. So just keep that in mind. Yes. One of the key things you have to understand is the course is recorded by utilizing AI, right? Now the course is accredited because we got it checked by the British authorities, right, in UK. And they said, yes, it's perfectly fine. I mean, this IBM Watson is speaking better than us. So we don't have any problems with that. Yes, right? Yes. But they said, yes, that's fine. The exams, so we do provide courses in Urdu and other languages, but the exam will be in English. So you have to go through your assignments in English, quizzes are in English, all of those things are in English, right?
So that's one thing. If I have to show you, I'm trying to show you the course in English, right? Because it's in Turkish and Spanish and multiple languages. I'm just trying to see that. But if you are based in Toronto, you can take my number, sister, and Ji. contact me. And inshallah, I will try to guide you. You can start doing if you buy the DevOps right now, you can start doing some of the courses in Urdu if you can understand a little bit. But as soon as like on Friday or Saturday, the English lands on, you can then start, you can then transfer yourself. Sure. Okay, inshallah. Yes, because I was chatting with someone on WhatsApp. They recommended doing a CAT. CAT is but the first step. CAT is the first step, but I like see. you can take both the steps at the same time because you're learning. How much time can you invest? Oh, I'm home, so I can invest maybe 4 hours a day or so. I have children, but 4 hours a day would be okay 4 for me, hours a day inshallah. is something you can even complete your SysOps as well, right? I see. But I don't have much IT knowledge. Is it like from basic? You will be taught from basic. So I if you start your lectures by doing Linux and Python, right? And the CISSP, that is the first step you have to do. And then if you keep on moving forward, you'll be able to complete all of those things within no time, right? I see. Inshallah. So that's one thing that you have to follow. Apart from that, there is nothing else. I mean, let me give you my number. You can take my number, sister. Okay. Jazakallah, sure. So here you go. So message me so that I can save your number. Farida is the name of my old friend mother. So Farida, I said, okay. Yes. He used to sit with me on the same desk. We shared the same desk in the school for 10 years. I see. Yes. Hopefully there's something good in that. Inshallah. Okay. Yeah, actually, I was trying to contact Nafi for a long time, and I really wanted to speak with you because I know you were based in Toronto. So I'm glad I joined this today. So at least I can, directly talk to you because I was confused. I've been following Nafi for, I think, over a year, but I was confused where to start off. Well, there's a lot of confusion regarding that. Even though I've made so many videos, but still people will struggle. So what I've done is I'm sitting live more, and there will be some days specifically for English speakers. And this session will be recorded in multiple languages and will be sent over in all multiple languages, right? So that they can understand and they can do all of those things. What is your qualification over here? Have you completed something over here or not? Yes, so I was more in healthcare. So I was working in a dental office. Okay. I've done some courses in, early 2000s. I was trying web design. So I have HTML and, some basic JavaScript. Okay. Yeah. Other than that, I did some office admin eventually. And, with the children when they were young, it's just working from home, doing some office The best admin. thing for you would be, working as a DevOps engineer, like even the entry-level DevOps engineer in Vancouver is like, you can see, this is the entry level. I see. Is it remote though? From Vancouver is? Oh, some of these positions are like that, but some of these positions are remote as well. So you have to DevOps and infrastructure lead. This is something you can only do if you complete your DevOps and SysOps Cloud Advancement track both, right? So okay. You have to study. The most important thing is going to be you have to study these courses. So if you finish off, like you said, 4 hours, right? 4 Yes. hours a day, 7 days a week, that's a good amount of hours. So that's like roughly 30 hours a week. 120 hours is something, if you can spend 20 hours, I would say like this, the key hours is 157 hours from here and 70 hours from there. After completing 300 hours, you can start applying for jobs in Canada. In Canada, like even the remote ones, right? If you want to just go for the remote ones, then yes, I mean, you can apply for, the remote ones. So you can apply. I mean, DevOps engineer, Terraform, AWS, this is something we completely cover, but they're seeking a bilingual, right? So you're not bilingual. Right. This is a contractor position. This is a completely remote position, so yes, you can. If you follow through, they have taught in a way that it is extremely easy, inshallah. So you'll be able to do it, inshallah. Okay.
So if you want to study the DevOps and SysOps Cloud Advancement track together, that is a much better way of getting into the job market faster, inshallah. Okay. I see. Okay. Jazakallah. Barakallah fi, inshallah. Okay. Yes. Next is Junaid. Go ahead, Junaid. Assalamu alaikum, Faisal bhai. I hope you are fine. Faisal bhai, last week आपसे बात हुई थी. मैंने अरामको के साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस पे काम किया था. तो वही जो उम्रा करके आया था अभी. जी बिल्कुल. हाँ जी. तो फैसल भाई मैं रिक्वेस्ट की थी सीवी के लिए हेल्प अगर मिल जाए. तो आज शोएब भाई से भी बात हुई थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि प्रोसेस है, हम पोर्टल मैनेजर को फॉरवर्ड करेंगे आपके सब क्रेडेंशियल्स, उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा तो उसके बाद. तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट मंथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा इस कंपनी के साथ में, और साथ में मेरा इकामा भी फिनिश हो जाएगा. उसको बोलो कि तुम्हें जल्दी कर दे. उसको बोलो कि तुम्हें जल्दी कर दे. ठीक है. जस्ट वो चाह रहे थे कि आपकी तरफ से कुछ राइटिंग में चला जाए तो दैट विल बी ग्रेट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. शोएब, ये जुनैद मुस्तफ़ा इनका नाम है. ये आरामको में काम करते हैं सऊदीया में. प्लीज़ इनका रेज्यूमे कंप्लीट कर दिया जाए और जल्द से जल्द इनका कर दिया जाए. और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मुझसे फ़ोन पे बात कर लेना, मैं तुमको बता दूँ. ठीक है. जज़ाकल्लाह. ठीक है भाई. चलें. मैंने बता दिया इसको. मैं आपका ईमेल एड्रेस भी इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ जो आपने मुझे भेजा है. जी. ठीक है. सही है. ईमेल एड्रेस क्या है आपका? ईमेल एड्रेस आई विल फॉरवर्ड टू यू नाउ. हाँ भेजिए. जुनैद मुस्तफ़ा आपका नाम है ये? जी. हमारी गिरा नहीं है यार, क्या बात है. हमारी दाढ़ी कहाँ गई तुम्हारी? दाढ़ी भी इंशाल्लाह सर रख लूंगा. जुनैद मुस्तफ़ा. यस. पीडीएफ में नहीं, वर्ड में उसको सीवी भेजो अपना. ओके. मैं ये रॉन्ग है ईमेल, मुझसे टाइप रॉन्ग हो गया. हमारी सीवी भेजा दिया. ओके ठीक है. चल मैंने बोल दिया. ठीक है. जज़ाकल्लाह फैसल भाई. जी. नेक्स्ट लेकर आइए जरा. नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद अफजल, बोलिए. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? सलाम जी, बोलिए. एक्चुअली मैंने थोड़ी सी लेट ये ज्वाइन किया था, तो मैंने ये पूछना था कि मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ आपका इस कोर्स का, बट मैंने डेवऑप्स के कुछ टूल्स कवर किए हुए हैं. तो आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस लिहाज से सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को? लाइक इंटर्नशिप्स करवाते हैं हम लोग या जॉब वगैरह ऑफर करते हैं? आप जाइए पहले पुराने जाके ना सुन लीजिए, उसमें मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ. ठीक है. आप पुरानी वीडियो जाके देख लें, उसमें पूरी चीज़ें आपको करवाई जाती हैं, पूरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हैंड्स ऑन काम करवाया जाता है, लैब्स हैं आपके पास, इंटर्नशिप मिलती है, इट्स अनपेड इंटर्नशिप, वो भी मिलती है, सब कुछ काम होता है. सो एक प्रोसेस है. आप जाके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से पूछ लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. एक्चुअली मैंने कुछ टूल्स कवर किए हैं डेवऑप्स के, जैसे गिट है, जेंकिंस है, डॉकर भी है, क्यूबरनेटिस. ये मैंने कवर अप किए हुए लर्निंग प्रोसेस पे, और डॉकर का थोड़ा सा मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है. तो मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं? जाकर कोर्स पढ़ो पहले. जो तुमने कवर किया है ना, बहुत सारे लड़के आते हैं जिन्होंने कवर किया होता है, जब वो पढ़ते हैं तो उनको फिर पता चलता है कि क्या चीज़ उनको नहीं आती. ठीक है. अगर तुम्हें EC2 इंस्टेंस खड़ा नहीं करना आता, EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, CI/CD की पाइपलाइंस, कोड डिप्लॉय, कोड कनेक्ट, सब पे काम नहीं आता, तो दिस इज अबव एंड बियॉन्ड व्हाट यू नो राइट नाउ. ठीक है. जो तुमने चीजें सीखी है वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन उसका तुम्हें और आगे जाना पड़ेगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू स्टिल हैव टू लर्न बिफोर यू कैन सिक्योर अ जॉब. अगर तुम इंटरव्यू में कहीं जाते हो तो तुमसे वो कुछ सवालात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें जो है ना, हमारे पास ये
AWS कॉन्फ़िगर करनी है, आती है आपको? बोलेंगे हाँ कॉन्फ़िगर करना आती है। कैसे करूँ कॉन्फ़िगर? हमारा जी PCI DSS है। PCI DSS क्या चीज़ होती है? बोलेंगे इसको बाहर भेजो यार, दूसरे बंदे को बुलाओ। ओके तो you need to understand the industries in which you are working, ठीक है ना? अगर वो नहीं आती तो फिर इन माइक्रो सर्विसेज को इनको तुम्हें कुछ भी काम, तुम जितना सीख लो तुम्हें कुछ नहीं आता फिर, क्योंकि तुम्हें ही नहीं करना आता, ठीक है? तो ये डिफरेंस है, ये कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, कोड स्टार, कोड क्लाउड वॉच, एक्सरे, ये सारी चीजें हमने उसमें कवर की हैं। बाकी लैब्स हैं लेकिन ये क्लाउड ऑन में ऐड ऑन में आप ले सकते, ये लैब्स आपको मिलेंगी, आपको और दूसरा काम मिलेगा, ये सारे टूल्स मिलेंगे जो तुम नाम ले रहे हो, सब चीजें ये अलग है, ठीक है ना? क्यूबरनेटिस के पूरा सर्टिफिकेशन ट्रैक हमने कवर किया हुआ इसके अंदर, वो सब चीजें हैं, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। इसमें बहुत सारा काम है जो तुम्हें करना है, अगर तुम्हें वो नहीं आता तो तुम्हें काम अभी नहीं आता, यू आर वेरी फ्रेश। मेरे पास एक्सपीरियंस लोग आते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है हाँ यार ये चीज़ें नहीं सर, मैं बिगनर हूँ एक्चुअली। आई हैव डन मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेरा बैकग्राउंड है। बट डेवऑप्स चूँकि एक एडवांस चीज़ आई मार्केट में, तो मैंने कहा चलो इसको मैं कर लेता हूँ, क्योंकि जीरा ट्रेलो पे मैंने काम किया और प्रोजेक्ट कुछ एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। बैकग्राउंड से अगर तुम उसके साथ पढ़ते हो तुम्हें फायदा होगा, बिकॉज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यार मैं इसके अंदर कौन कौन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीजें अप्लाई कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, विल बेनिफिट यू, ठीक है? ओके सो बट यू हैव टू लर्न। जी सैयद सितवत रिजवी, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सबसे बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन काम आप और आपकी टीम इस उम्मा के लिए कर रहे हैं। मैं आपको तकरीबन 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ अलनाफे को। अच्छा, अब सवाल बेसिकली बहुत ही बेसिक सा है। मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में बेसिक्स पता है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स में यूज़ किया है इसको। अब मैं चाह रहा था कि इसमें अपनी नॉलेज बेस बढ़ाऊँ और कोई इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन करूँ, सो दैट मैं अपनी जो फील्ड है उसमें इस चीज़ को इनबिल्ड कर सकूँ। तो उसके लिए पूछना ये था कि कौन सी आजकल चल रही है सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन ब्लॉकचेन के अंदर जिसको मैं परस्यू कर सकता हूँ? देखिए मैं सर्टिफिकेशंस नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, और मैं सर्टिफिकेशंस के बारे में कहता भी नहीं। आपको जना सर्टिफिकेशन से ज्यादा आपको काम आना चाहिए। अगर आप ब्लॉकचेन की जॉब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार ब्लॉकचेन की जॉब्स क्या कर रही है मार्केट में, क्या हो रहा है ना। म्यूट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से पीछे आवाज आ रही है। तो पहले हम जरा देखते हैं कि ब्लॉकचेन में हो क्या रहा है ना। तो पहले आप तो लिखें ब्लॉकचेन, ठीक है ना, और उसके बाद आप लिखें वर्ल्ड वाइड। आप कहाँ पर होते हैं, किधर होते हैं आप, होते कहाँ पर हैं आप सैयद साहब? जी, मैं बेसिकली पाकिस्तान में हूँ, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट रहा हूँ। देन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम आईबीए, और आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम बैंकिंग। अब मुझे टोटल 15 इयर्स का अराउंड बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। आई एम अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन दुबई इस्लामिक बैंक में शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है मेनली वो इस्लामिक फाइनेंस का है। ऑलमोस्ट 4 से 5 बैंक्स का एक्सपीरियंस है मेरा। तो ओवर द पीरियड इंटरेस्ट रहा है शुरू से टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रामिंग में। तो आई एम जस्ट 37 years old अभी राइट नाउ। तो what I am thinking कि what is next, like I've achieved alhamdulillah so much in this young age। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी साइड पे बिल्ट इन करूं, बिकॉज आगे के 20-25 साल मैं मजीद बैंकिंग में नहीं देख रहा। तो इन दिस रिगार्ड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो ब्लॉकचेन एक चीज मुझे 2017 में नजर आई, 18 में नजर आई, तो आई डिड माय मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है, यू आर यंग, ठीक है ना, एज आपका मसला नहीं। आपको करना क्या चाहिए, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उनके लिए, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं है उनके लिए, तो वहाँ से निकलना, ठीक है ना। आपको ये प्लान करना चाहिए कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको पढ़ना क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या चाहिए जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इफ आई हैव टू शेयर इट विथ यू।
आपको ब्लॉकचेन, डेवऑप्स और सिसऑप्स मिला के पढ़ना चाहिए अगर आपको सिर्फ ब्लॉकचेन में जाना है। फायदा ये होगा कि अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप ब्लॉकचेन की जॉब्स देखते हैं, ब्लॉकचेन में ना 4-5 किस्म की जॉब्स हैं। आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आदमी हैं, आप सीनियर लेवल टाइटल्स भी रख चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक और बंदा भी है जो यूके में कहीं से मास्टर्स कर रहा है, वो उसमें भी नाम याद, शाहिद नाम है, पता नहीं क्या नाम है, वो भी बड़ा अच्छा बंदा है माशाल्लाह, वो भी कर रहा है। उसके लिए तो हमने उसको, वो डेवलपर है लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर है और प्रोजेक्ट मैनेजर है, राइट। तो उसके लिए तो मैंने पोजीशन रखी है कंपनी में इंशाल्लाह, जब हम यूके में इसको ऑफर करेंगे। देखिए मेरा मसला है, मेरा मकसद है आपके लिए अगर आपको बताना ना, यूके में इस वक्त ब्लॉकचेन इंजीनियर्स इतने पैसे कमाते हैं, आपको एक हर्डल है वहां पर, वो आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट वीजा पे जाएं, पढ़ाई करें और जॉब पकड़ें ना। तो ये आप अगर यहाँ पर बैठकर अगर आप डेवऑप्स और सिसऑप्स पढ़ लेते हैं और ब्लॉकचेन साथ में पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको कोई डेवलपमेंट से वहाँ रोक नहीं सकता। ना सिर्फ डेवलपमेंट से, बल्कि स्ट्रेटेजिकली आप अपना जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, जितना आपने मैनेजमेंट सीखी है, सब कुछ किया है, आप उसको इन्फ्यूज करते हुए एक पूरी प्रैक्टिस ब्लॉकचेन की चला सकते हैं। पीडब्ल्यूसी में काम कर सकते हैं आप, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपने फाउंडेशन किया हुआ है, तो पीडब्ल्यूसी में इस तरह के एग्जीक्यूटिव्स को बिठाते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, ठीक है ना, लेजरलेस बैंकिंग अब हो रही है, ओपन लेजर के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। आप करेंगे तो काम कंसल्टेंसी में, लेकिन आपको वो लोग क्लाइंट्स इस तरह के भेजेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर, बीएफएसआई जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी, इसमें आपको वो लोग ज़्यादा भेजेंगे क्योंकि आपका काम एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको उसको छोड़कर दूसरी जगह जाना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये आपकी जॉब्स हैं जो आपको नजर आएंगी, ठीक है ना। अगर आप यही जॉब्स लिंक्डइन पे देखेंगे तो आपको लिंक्डइन पे भी इसी तरीके से ब्लॉकचेन की जॉब्स नजर आएंगी, ठीक है। यूरोप के अंदर बहुत जॉब्स हैं इसकी, यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इसकी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए, डेवऑप्स सीखिए, सिसऑप्स सीखिए और फिर ब्लॉकचेन पढ़िए। फिर आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट उस फील्ड में नहीं बन सकता, आप छोड़ देंगे सबको पीछे। आपको कोई किताब शिताब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको, आप उस डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे होंगे, सीनियर लेवल पे काम कर रहे होंगे, इस लेवल पे आप जा सकते हैं। लेकिन एक जर्नी है, अगर आप इसके लिए तैयार हैं सही है साहब, तो फिर आप जा सकते हैं। मतलब कि देयर इज अ लर्निंग एक्सरसाइज है पूरी, आपको 2 घंटे 3 घंटे उतना लगाने हैं, काम पे बैठे हैं, वहाँ पे काम करते हैं, घर आके थोड़ा सा, आप श्योर शादीशुदा होंगे, आप अच्छे अच्छे भी होंगे, ठीक है? सारी चीजें, तो यू हैव टू प्लान इट आउट, दैट्स व्हाट यू कैन डू। जी बिल्कुल, शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं, बट ऑब्वियसली आगे बढ़ना है, चेंज जरूरी है लाइफ में, अदरवाइज यू आर स्टक। तो नहीं, इंशाल्लाह तैयार हैं। अब डेवऑप्स सिसऑप्स की आप बात करें तो इट मीन्स कि फिर मुझे अल्नाफे में जो आपका है उसमें रजिस्टर हो जाऊं मैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखें, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। जब आप जाते हैं ना तो आपसे बोलेंगे कि यार आज मैंने डेवऑप्स के ना ब्लॉकचेन नए ट्रेनर्स आ, तो मैं जिनसे नया काम करवा, ठीक है, तो उनको मैंने ना मुख्तलिफ चीजें निकाल के दी कि मैंने कहा तुम लोग को इस पे कोर्सेज बनाना है, इस पे बनाना है, इस पे बनाना है। तो उनको इससे पहले पता भी नहीं था, ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा चीज है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मार्केट जो है ना बहुत डायनामिक है और चेंज होती रहती है। तो हमने इस सब के ऊपर काम करके, रिसर्च करके, कोर्सेज बनाकर, सब कुछ करके तुम्हें डालना है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो कि जो भी पढ़े उसको उस लेवल पे काम आता हो, ठीक है। तो फिर उनको समझ आया कि अच्छा ठीक है, अब हमें डायरेक्शन समझ आई। और फिर वो मेरी कंसल्टिंग कंपनी में काम भी कर रहे हैं ना यूके में, वहाँ पर काम भी करेंगे जो हम यूके मूव हो रहे हैं। यूके में सिर्फ कॉलेज नहीं है, कंसल्टिंग कंपनी भी है। दैट इज अनदर थिंग, राइट। सो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आपको पढ़ना है तो पहले आप वहां से शुरू करें, पहले अपनी बेसिस बनाएं। ब्लॉकचेन की कोई सर्टिफिकेशन करके क्या करेंगे आप, आपको क्या मिलेगा उससे? व्हाट आर यू गोइंग टू अर्न फ्रॉम इट? कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग। आपको मेहनत करके पहले काम सीखना पड़ेगा। जी अब्दुल साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। जी, मतलब मैं कैट का स्टूडेंट हूं, अभी कल ही इनरोल किया है, मेरे साथ और कुलीग ने भी किया है, ग्रुप बनाया है। तो कुछ लोगों को क्या कहते हैं, बजट का इशू था तो हमने मंथली सब्सक्राइब किया है। तो ये पूछना था, लैब्स वगैरह जो हैं वो कब तक अवेलेबल हो जाएंगी? 4th मंथ मिलेंगे आप। 4th मंथ में। और इसके अंदर जो लोग एक मतलब जो भी ड्यूरेशन इसका है वो कंप्लीट कर लें,
उसके बाद इनका भी एग्जाम होगा, वो उसका एजुकॉल का, या वो जी डेवऑप्स में? की एग्जाम होगा, आपको एग्जाम की फीस अलग से देनी होगी, 250 पाउंड। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मैंने आपको आपका नंबर, क्योंकि मैंने आपका सिस्प का भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 1.5 साल पहले CISSP का एग्जाम पास भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ही ट्रेनिंग से। तो पहले 1-2 ट्रेनिंग ली थी मैं, उससे कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा मैंने दिया, तो दूसरी अटेम्प्ट में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। तो मेरी पूरी टीम को मैंने इनरोल करवाया है, 7 से 8 लोगों का। तो मैंने कुछ एक वॉइस नोट भेजा हुआ है आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे। लाइक आपने लोगों को जो इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, मेरी कंपनी मिलके आपके साथ लाइक काम कर सकती है। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में सॉक जो मैनेज सॉक अगर आप लोग बना लें, तो फिर हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनको हम ये सर्विसेज ऑफर करें और मिलके काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को PTA वगैरह की तरफ से कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आई है सॉक की, और वो एकदम से सारे अपने पास, आपको पता है सॉक के लिए टीम और ये चीजें और टूल्स उनके पास अरेंज करना सबके लिए मुश्किल है। तो हम इनको कोई जी आप मैसेज भेजें ताकि मैं ऊपर देख लूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सबके मैसेजेस पढ़ नहीं सकता। व्हाट्सएप पे जी मैं अभी लिख देता हूँ आपको। आप मुझे भेजें ताकि मैं नंबर सेव कर लूं, फिर मैं आपकी बात करवा ठीक। दूंगा। ठीक है। हमजा से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे कि वो आपसे डिस्कस करेंगे गालिबन। अलग बंदों से बात करवाऊंगा जिससे आप बात कर सकें। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ये स्टूडेंट जो है वो आपको पूरा, अगर आपको स्टॉक बनाना है, स्टॉक स्टैब्लिश करना है, तो स्टूडेंट पूरा स्टॉक स्टैब्लिश करके दे सकता है। ठीक है, वो ठीक है, हम वो मॉडल डिस्कस कर लेंगे। सही है, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, सलाम। जी हमजा हाशमी साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं जो है ना आपका डेव प्रोग्राम लेना चाह रहा हूँ, डेवऑप्स प्रोग्राम ना। जी। तो सर लेकिन उसकी फ़ी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और सर मैं भी 17 मेरी एज है और मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन पे हूँ। तो सर स्कॉलरशिप्स वगैरह या कुछ गिव अवे वगैरह। स्कॉलरशिप्स ऐसे नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर तुम अल्लाह के पास जाओगे और अल्लाह से बोलोगे कि मुझे जन्नत में जाना है, तो अल्लाह ताला ने रास्ते रखे हुए ना। जी क्राइटेरिया है, तो तुम अमाल करोगे तो जाओगे। हमजा हाशमी तुम्हारा नाम है, हमजा, तो हम अज्यूमिंग कि तुम मुसलमान हो, राइट? आई डोंट इवन हैव टू अज्यूम दैट। सही है। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है ना, देयर आर नो स्कॉलरशिप्स, यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड इफ यू वर्क हार्ड देन यू कैन यूटिलाइज दैट। इफ यू कांट वर्क हार्ड देयर इज नथिंग फॉर एनी ऑफ दोज पीपल। अगर लोग समझ रहे हैं, 99% लोग दोस्त में जो बैठे होंगे, मेजॉरिटी 100% मैं कह सकता हूँ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। वो क्या है कि वो कहेंगे कि काश मेरे पास मैं नमाज पढ़ लेता, काश के मैं रोज़ा रख लेता, काश के मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ लेता। काश यानी काश कहाँ से आ रहा है? काश वहाँ से आ रहा है कि वो जो है ना, कि मैंने किया नहीं काम, मेरे काम करने की इस्तिताअत थी लेकिन मैं कर नहीं सका। तो जो तुम्हारी इस्तिताअत है ना, तुम उसके हिसाब से काम करो। ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये प्रोग्राम लोग करके उनको O लेवल्स A लेवल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर कोई ये प्रोग्राम करता है और उसके अपने बच्चे को बाहर भिजवाना है, तो वो, मैंने ये सवाल सबसे पहले पूछा था एजुकॉल के बंदे से, जेसन से, जो उनका CEO है, कि यार मेरे पास बच्चा आता है और वो 9वीं जमात का बच्चा है, 10वीं जमात का बच्चा है, 8वीं जमात का बच्चा है, या हमारे पास कोर्स पढ़ लेता है, निकाल लेता है, एग्जाम भी निकाल लेता है। ठीक है। तो उसको O लेवल्स A लेवल्स कहाँ गया? उसने कहा O लेवल्स A लेवल्स खत्म हो गया। यार ये तो बड़ा मसला हो गया फिर। तो कैम्ब्रिज वाले क्या करेंगे? यार कैम्ब्रिज से क्या कर सकते हैं? कैम्ब्रिज की तो सर्टिफिकेशन है, और कहाँ से? मतलब कैम्ब्रिज ने अपनी लेवल्स बनाए हुए, हमने ये लेवल्स बनाए, गवर्नमेंट के लेवल्स हैं। कैम्ब्रिज इन गवर्नमेंट के लेवल्स को फॉलो करता है। ठीक है। तो उसने कहा कि यार जब वो चीज़ खत्म हो गई तो फिर अब हम क्या करें ना उसमें, ये तो उनका मसला है, वो देखें जाकर के इनको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि उसमें क्या है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम घर वालों को बोलो मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, बस मैं बैठ के यही काम कर। नहीं सर, सेकंड ईयर खत्म ही होने वाली है। तो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं बाय द वे। तो ये देखो, जो कैम्ब्रिज है ना, कैम्ब्रिज उसको इक्विवेलेंट मानते हैं। अगर तुम्हारे ग्रेड D और से G के करीब आता है तो तुम्हें ओके लेवल 1 मिलता है RQF का, और A to C आता है तो इतना है। ठीक है ना, लेवल 2 मिलता है RQF का। और अगर तुम A लेवल करते हो तो तुम्हें ये मिलता है लेवल 3। यहाँ पर
5, 6 and 7 और 8 पे हम काम कर रहे हैं, 5, 6 and 7 and 8। तो 5, 6 and 7, 8 जो करता है, अगर हमारी क्वालिफिकेशन खत्म कर देता है, एग्जाम पास कर लेता है, एग्जाम टफ होगा, एग्जाम आसान नहीं होगा। एग्जाम के पहले तुमको पता चलने वाला है भी क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी टफ। अगर तुम निकाल लेते हो, तो मैंने इसको बोला बच्चा आता है मेरे पास निकाल लेता है, उसने कहा निकाल लिया तो अच्छी बात है, उसको मैंने कहा तुम क्या करोगे, उसका हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, हम उसका ऑडिट भी करेंगे। मैंने कैसे ऑडिट करोगे, कह रहा हम उसको बुलाएंगे और उससे इंटरव्यू लेंगे कि तुमने क्या पढ़ा, लर्निंग आउटकम्स क्या थे, टीचिंग आउटकम्स क्या थे, क्या किया। मैंने कहा हाँ पूछ लो जाके, मैं इतने आराम से थोड़ी पास कर। मैंने कहा मैं तो उसको मैंने मेटामॉर्फिकली बोला कि मैं तो तलवार रख के बैठूंगा। अगर मैं उसके सामने बोलता है तलवार रख के बैठूंगा, बोलेगा ये कौन आदमी है भाई, पास जाएगा। ठीक है, तो उसने को मैंने कहा कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम। मैं तुम लोग को बोल सकता हूँ कि मुसलमानों में मैं तलवार रख के बैठूंगा और तुम्हें उसके पास कर, अगर तुमने पास नहीं किया, इट्स गोइंग टू बी टफ, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, एग्जाम्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ। सर असल में मैंने जो है ना वो एपटेक से जो है ना वो, अच्छा सुन लो, एपटेक शेपटेक सब बेकार है, मैं तुमको बता देता हूँ क्या है। वहां तुम्हें क्विजेस देने, एटलीस्ट 5 क्विजेस होंगे, प्रैक्टिस क्विजेस तुम करते हुए आ रहे होगे, 5 से 10 क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स अलग है, उसमें तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अभी सारी कंडीशंस तुम लोग को पता चलेंगी, क्योंकि हम टर्निटिन और दूसरे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अगर तुम चैट जीपीटी के जरिए करोगे तो तुम फंस जाओगे। डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। हम चैट जीपीटी से बोलूंगा इससे तुमसे निकाल के बनाया, बोलेगा हाँ जी मुझसे बनाया, अच्छा बस फिर तुम्हें ग्रेड F मिलेगा, यू हैव टू राइट इट डाउन। प्रेजेंटेशंस तुम्हारी होंगी और फिर लैब होगी, मैं कोई रिटन एग्जाम नहीं ले रहा। और इंटरव्यू, 5 चीजें हैं, मैंने तुम लोग के लिए आसान की है। 5 चीजें हैं, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, लैब्स हैं, इंटर्नशिप लैब्स दोनों हैं, और वो दोनों को मैं सही करता हूँ। और फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू कोई नहीं लेगा, none other than myself and some other people, ठीक है ना। So there will be 2 to 3 interviews. I'm going to ask you the questions. What did you learn in Docker? What did you learn in Kubernetes? How to do this, how to do that. You should have done all of these things because they were part of the labs. Tell me the process of configuring this, and this. So you better have all of those things settled down. Everything is remote. Everything will be wo. And I have, अगर तुम और गलत काम नहीं करना, so if you copy the interview something like that और वो लीक हो गया, वो सवाल तुमसे पूछा है ना, तुम्हारे पास आऊंगा, मैंने कहा इसके सर्टिफिकेशन कैंसिल करो, सर्टिफिकेशन कैन बी रिवोक्ड एज वेल। ईमानदारी से काम करो ना। मैं वो मुझे पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, इंडिया में किसी के पास नहीं है, अल्लाह ताला में दे रहा है, ऐसे तो नहीं दे रहा ना, तो हमें कदर करनी है, ठीक है। तो मैं उसकी कदर करूंगा, मैं इसकी मैं सख्ती से काम करूंगा। आई एम द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट विद माय ओन फैमिली एंड देन आई एम द स्ट्रिक्टेस्ट। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, तो सो और अगर तुम्हें वो जो तुम्हारा सवाल है कि फीस बहुत ज्यादा है, जाओ एफिलिएट बन के काम करो, पैसे कमाओ, एंड देन यू विल बी एबल टू सपोर्ट योरसेल्फ। दैट्स द वन थिंग यू हैव टू डू। मूसा खान बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं अलनाफे को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा था, तो उस वक्त जब आपकी फीस कोई 2,500 के करीब थी। अभी बस सर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, अभी मैंने केट में इनरोल कर दिया है हाफ ईयरली पे। तो सर मैं अभी ये जो मैंने हाफ ईयरली फीस पे की भी बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज किया है, बाकी भी हाफ ईयरली का जो रहता है वो भी हो जाएगा। लेकिन सर इससे मुझे कोई जॉब मिल जाएगी कैट पढ़ते हुए, मतलब आगे का डेवऑप्स या कुछ मैंने पढ़ना है तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुम लोग की कैट के अंदर बहुत सारे बच्चों की जॉब्स हो रही हैं, जो आ रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने तुम्हारे कैट के अंदर नई चीजें डाली हैं जी। उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज मैंने कुछ हटा दिए हैं और कुछ नए कोर्सेज डाले हैं, ठीक है। मैं अगर मुझसे पूछते हो कि भाई कौन से नए कोर्सेज डाले जिससे तुम्हें जॉब में बड़ी आसानी हो, जो अब्दुल मालिक साहब आए थे ना अभी, वो कहते कि मैं वो बना रहा हूँ, क्या नाम है, सॉक बना रहा हूँ और मुझे बंदे चाहिए। मैं इनसे बात करूंगा इस सिलसिले में, ठीक है, क्योंकि इनके पास स्टडी सप्लाई आ सकती है तुम जैसे लोगों की, जो कोर्स कंप्लीट करेंगे आप उनको लें, उनसे काम करवाएं और उनको थोड़े से पैसे भी दें, जरा भी दें उनको, सब कुछ करें। इस नए कैट के प्रोग्राम के अंदर इसका नाम जो है वो साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा होगा। इसके अंदर तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी। इसमें तुम्हें पाइथन ऑटोमेशन मिल रहा है 35 घंटे का,
तो जो पाइथन मैंने पढ़ाई ना, उसके बाद जब तुम ये पढ़ लोगे तुम पाइथन के मास्टर हो जाओगे, बस पाइथन खत्म हो गई। इसके बाद तुम बोलो पाइथन जैंगो फ्रेमवर्क है, फलाना फलाना, तुम्हें सब पे काम आ गया, खत्म। उसके बाद बैश डीप डाइव जो मैंने पढ़ाई, उसके बाद ये बैश का हैंड्स ऑन डीप डाइव ये भी मैंने डलवाया, ये भी नजर आना शुरू हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये तुम्हें मिलेगा 31st मंथ पे, तुमको ये मिल रहा है, फर्स्ट मंथ में तुम्हारे कोर्सेज खुल रहे हैं, फर्स्ट मंथ में तुम्हें ये बड़ा अच्छा वो मिल रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे अच्छे कोर्सेज खुल रहे हैं, तुम जाके कर सकते हो, बैठ सकते हो। उसके बाद तुमने SysOps अच्छी तरह कर लिया, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ये 10वें महीने पे तुमको, पहले 6ठे महीने पे ये मिल रही है, फिर 10वें महीने पे और 11वें महीने पे, और ठीक है ना, तुम्हें ये लैब्स मिलेंगी। ये लैब्स जिसने कर ली वो इलास्टिक सर्च, सॉक इंजीनियर, थ्रेट हंटिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी स्पेशलिस्ट सब में काम कर सकता है। आधे से ज्यादा जॉब सॉक इंजीनियर्स की जो है ना, वो आपको सीम मांगती है, तुम्हें पूरा सीम आ गया, इंस्टॉलेशन आ गई, चलाना आ गया, कॉन्फ़िगर करना आ गया, रिपोर्ट्स निकालना आ गई, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। बाकी सारा काम जब तुम करते करते आ रहे हो, उसमें सीखो, काम करते हुए आओ, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें एग्जाम देना है, एग्जाम की तुम्हें फीस अलग देनी है, ठीक है ना। उसकी रजिस्ट्रेशन के पैसे और एग्जाम की फीस मिलाकर इसकी 300 पाउंड है, वो तुम्हें अलग देनी है। इतने का कोर्स नहीं है जितने की फीस है, हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रही है, उसमें 180 पाउंड उसके पास जा रहे हैं, 70 पाउंड मेरे पास है, क्योंकि मैं एग्जाम ले रहा हूँ जी। तो वो सर ये जो एग्जाम है इसके बगैर भी कोई जॉब कर सकते हैं इसके या बगैर इसके अभी तक सबकी इसके बगैर हो रही है ना। ये तो अगर तुम्हें बाहर जाना है तो उसके लिए, अगर तुम्हें बाहर एडमिशन लेना है, तुमने कहा पैसे जमा कर लिए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैंने कैट किया, ठीक है, तुम्हारा बैचलर्स में एडमिशन हो जाएगा, ये उसके लिए। जी डेवऑप्स पढ़ा, उसका 1 साल कम हो गया, जिसने डेवऑप्स से सॉफ्ट मिला के पढ़ लिया उसके 2 साल कम हो गए, क्योंकि हमने सारा वो बनाया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो यू कैन फिगर दिस आउट, ठीक है। जी सर। और सर ये कैट का जो पहला फेज है पाइथन, लिनक्स और CSSP, तो सर ये मैंने 1 by 1 पढ़ना है, पाइथन फिर लिनक्स फिर CSSP? जो उस पोर्टल के अंदर तुम्हें सारे इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे, तुम सब लोगों को ईमेलें भी चली जाएंगी, कोर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर कोर्स के ऊपर तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट नजर आएगी। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब चीजें आ रही हैं उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला है हर कोर्स के ऊपर ये डालो, ये कोर्स क्यों पढ़ना है, इसकी क्या प्री रिक्विजिट्स है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये कोर्स क्यों पढ़ना है, इसके क्या प्री रिक्विजिट है। ये कोर्स पढ़ने से पहले, ताकि तो अगर तुम जाओगे बोलोगे 50 कोर्स है, कोर्स खोलोगे बोलोगे जी नहीं ये नहीं, आप यहाँ जाएं, ये कोर्स पहले पढ़ें, ये कोर्स पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें, फिर इधर आए। जी सर। बहुत सारी चेंजेस करवानी। जी सर, जबरदस्त। तो तुम अब उसको फॉलो करो। अब तुम्हें उर्दू में पढ़ा रहे हैं, उर्दू में पढ़ सकते हो तुम, एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश में हो। जी सर। ये अल्लाह ताला ने की बड़ी फजल है, अल्लाह का बड़ा फजल है। तुम उर्दू में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, चाइनीज पढ़ो, बंगला में पढ़ो, उसने कहा यार तुम किसी जबान में पढ़ो, डजेंट मैटर। एग्जाम तुम असेसमेंट उसकी इंग्लिश में लोगे और हम ऑडिट कर सकते हैं, सैंपल उठा सकते हैं कि यार इनका हमने इनका हम ऑडिट करेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे। हमने कहा ठीक है जाओ करो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें फिर इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, यू बेटर हैव सम गुड स्किल्स, अदरवाइज तुम्हारे रिपोर्ट देगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा आगे इफ यू कांट स्पीक प्रॉपर्ली। जी जी मैं बता दूं, आई विल नॉट बी इजियर। दिस इज द रीजन के जो है ना, मैं अपनी कॉलेज की जेपरडाइज थोड़ी कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन। पूरे पाकिस्तान इंडिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, बांग्लादेश नेपाल में, जो कि बरतानिया में जाके कॉलेज खोल लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे करवा रहे हैं। तुम्हारे पास 300 घंटे हैं आइल्स के, तो 500 हैं, तुम्हारे पास 300 घंटे हैं, जाओ इंग्लिश में क्लास में रोजाना बैठो, ठीक है ना। मक्खी की तरह, जैसे मक्खी दीवारें बैठी थी ना, सब बैठ जाओ, फ्लाई ऑन अ वॉल, बैठो सिर्फ सुनो, बात नहीं करो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, ठीक है ना। फिर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बात करो अपने आप से, ठीक है। फिर अल्लाह से बात करो, इंग्लिश में कोशिश करो अल्लाह से बात करने की। अंग्रेज भी तो बात करता है ना, इंग्लिश में बात करो अल्लाह ताला से, अरबी में बात करो, ठीक है ना। नमाज से पढ़ो तो सीखो कि भाई अल्लाह से मैं क्या बात कर रहा हूँ। मूसा खान, तुम्हारा नाम मूसा खान है यार, ठीक है। अहमद अली साहब बोलिए क्या सवाल है आपका। जी अहमद अली साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। मैं फिर निकल रहा हूँ उसके बाद। मैं अस्सलाम वालेकुम। चैट में जिसको सवाल करना कर दे, मैं थोड़े से वहां भी देख लेता हूँ जल्दी से स्ट्रीम पे। जी बोलिए क्या सवाल है आपका। बोलिए क्या सवाल है अहमद अली। बोलिए अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
जी सर, ये मैंने तकरीबन 2 डेज पहले कैट में एनरोलमेंट लिया था, और उससे पहले तकरीबन 1 महीना पहले मैंने ना सपोर्ट पे सबसे जितने भी जो मेंबर्स हैं जो गाइड वगैरह करते हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली थी कि मुझे कंप्यूटर और मोबाइल चलाना नहीं आता। मतलब ज़्यादा बेसिक मुझे नहीं आता, आईटी का बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। तो वो कहते कोई मसला नहीं, आप कर लें। तो सर जैसे मैंने एनरोल किया, तो कोर्स की कुछ कुछ समझ लगी है, लेकिन आगे 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 मुझे जो है ना समझ नहीं लग रही, और मैं अगर बात भी करता हूँ तो वो कोई मुझे सही तरह गाइड नहीं करता। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बच्चा है जो कपड़े की दुकान पे काम करता है, आज हमारी कंपनी में माशाल्लाह 2-2.5 लाख रुपए कमाता है। एक लड़का है जो आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम के कारखाने में काम करता है, उसका नाम है आइसक्रीम वाला। एक लड़का है जो कि दूध वाले का बेटा है। तो ये पंजाब के पसमानदा इलाकों से आकर इन्होंने मेहनत करके कर लिया। अगर तुम मेरे पास जूम पे आके क्लिक करके बैठ सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम वहां बैठकर लेक्चर सुन सकते हो। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा सुनोगे, समझ तो आएगा ना फिर। लेकिन सर वो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, उनकी समझ नहीं लग रही। जैसे आप बता रहे हैं ना कि मैं ऑपरेशन लेकर आ रहा हूँ कि क्या कोर्स कैसे पढ़ना है, कितना कितने मिनट्स पढ़ना है। मैंने उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, तुम लोग वीडियोस नहीं देखते, रग भी नहीं नजर आता। अब मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा उसके पॉम्फलेट्स बनाओ इन्फोग्राफिक्स में, ठीक है, वो बनवाओ। क्योंकि एजुकॉल ने कहा कि भाई कोई जो है ना, हमें इसको बहुत आसान कर दो, इसका प्रोसेस पूरा इतना आसान हो गया हर किसी तो को। सर ये जो 300 पाउंड्स बनते हैं, ये तकरीबन कितने पैसे बन जाते हैं? क्योंकि मैं भी मंथली में एनरोलमेंट लिया मैंने। मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान में अभी मैं चेक करता हूँ कि 280 का है, 300 का पाउंड होगा। एक जमाना था जब मैं बाहर गया था, उस जमाने में 80 का था, ठीक है। तकरीबन मैंने सर ये पिछले महीने में लैपटॉप लेकर आया हूँ स्पेशली इसके लिए। तो मैं बीकन उसमें काम करता हूँ एज अ लैब अटेंडेंट। तो ख्वाहिश तो मेरी थी कि मैं कोई अच्छा कोर्स करके तो अपने आप को एडवांसमेंट करूं, लेकिन जिस तरह की मुश्किल मुझे डिफिकल्टी पेश आ रही है, तो इस तरह मैं लग रहा है कि शायद मैं छोड़ दूंगा, नहीं क्योंकि देखो, मुझे देखो मेरी बात सुनो। तुम जाके अपने साथ लोगों को जोड़ो जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं। तो मैं वहां पर ना अभी फॉरम्स भी मिलेंगे, फॉरम्स भी मैं खोल रहा हूँ, कम्युनिटीज भी खोल रहा हूँ। तुम जाओ उस कम्युनिटी में बैठ के बात करो, यार मेरे साथ कोई हेल्प करे। पोर्टल में जाओ, वहां पर पोर्टल बोल रहा हूँ, फेसबुक के ग्रुप पे जाओ, बोलो यार कोई मेरे साथ हेल्प करे, ठीक है। अपने साथ साथी ढूंढो जिसके साथ तुम बैठ के पढ़ सको, ठीक है। सर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फिजिकली करता, जैसे कि आपने कराची में बनाया ना दफ्तर। तो कराची के अगर दफ्तर में होता तो कोई पढ़ाता अगर है? चाहे 6 घंटे या 8 घंटे बैठना पड़ता, मैंने आके बैठ जाना था मैंने। अब नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपका ऑनलाइन है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, तो मैं छोड़ दूं। हो सकता है ऑनलाइन ही दुनिया चल रही है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें बैठे बैठे कोई वो कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं वहां पढ़ा रहा होता तो इन तमाम टीचरों को दुनिया भर से उठा के लाता, तो फिर उनकी फीस कैसे देता? तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। ऑनलाइन की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारा जरिया बनाया कि तुम अफोर्ड कर सकते हो। अफ्रीका में लोग पढ़ रहे हैं, अरब में लोग, ममालिक में लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? अर्जेंटीना में लोग पढ़ रहे हैं, स्पेन में लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑनलाइन एक जो है ना बड़ा आसान रास्ता है जिससे तुम पढ़ सकते हो, वरना तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास चीज कंट्रोल में है, तुम वहां जा ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं कहाँ से अपनी जेब से तो नहीं पढ़ा सकता ना। मेरे पास उमर बिन खत्ताब के लेकिन बाद बदू आया, सर अगर चीज उसने की कहा समझ कि ना देखो, अगर किसी चीज की समझ ना लग रही है, सॉरी, तो बंदा उसी वक्त यानी कि उसका हल कैसे ढूंढे? क्योंकि मैं कॉल करता हूँ, कोई उठाता नहीं है या कोई बताता नहीं है। कॉल पे तुम्हें सपोर्ट में, सेल्स एंड सपोर्ट में उनका काम ये नहीं है कि वो तुम्हें बताएं कि पढ़ना कैसे है। वो तुम्हें ये बता सकते हैं कि तुम्हें क्या चीज मिली है, क्या चीज नहीं मिली है, ये है उनका काम। वो खुद बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पर। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ पढ़ के निकल गए बाहर, ठीक है। तो सर फिर सूरत में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि डिस्कॉर्ड चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैसेज अगर हम ड्रॉप करते हैं, तो उसका जो आंसर वो काफी देर बाद आता है। व्हाट्सएप ग्रुप तो कोई है नहीं, मुझे तो नहीं पता कोई व्हाट्सएप ग्रुप तुमने। ये, अब्दुल बासित सर हैं, अब्दुल जिनकी वो बासित थोड़ा खुद काम करता है। असिस्ट कर, अब्दुल उन्होंने बासित, मुझे ग्रुप में किया असिस्ट। देखो अब्दुल बासित खुद काम करता है। अब्दुल बासित वही है जो कपड़े की दुकान पे काम करता था, आज वो हमारे पास काम करता है। आज वो खुद बैठ के पढ़ रहा है डेवऑप्स, ठीक है। तो जी तुमसे बिल्कुल, जाके उन्होंने मुझे कहा था कि आप एनरोलमेंट ले लें, क्योंकि मैं डेमो देख रहा था। तो उनका मुझे मैसेज आया कि आप डेमो देख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? तो मेरी बात सुनो, तो देखो बहुत आसान तरीका है, ये अल्लाह ताला भी तुमसे पूछेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि अल्लाह ने अपनी किताब तुम पे आसान कर दी, राइट, है ना। जी तो
कुरान में तुमने पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं अलिफ लाम मीम, देयर इज नो डाउट that this book is a book of guidance. There is no doubt in this is the book of guidance. ठीक है, बिल्कुल ये समझ आ गया ना तुमको? ठीक जी है, जी बिल्कुल के बाद अल्लाह ताला उसी सूरह बकरा में फरमा रहे हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, धोखा मत देना, उस पर तुम अमल करो। अब तुम कहोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, बनी इसराइल के अल्लाह एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं एक एक आयत को कभी कभी 10 दफा पढ़ता हूँ। सर कौन कौन से कोर्सेज इसमें ऑप्शनल है जो हम नहीं भी कर सकते? मैंने इसकी वीडियो कल बना के दी थी, उसका तुम्हें वो भी मिल जाएगा। कल जो वीडियो थी ना, जी वो मैंने अल्लाह सपोर्ट पे कहा था, वो कह रहे थे कि हम जो ना 1-2 दिन तक आपको सेंड कर देंगे। नहीं, कोई सेंड नहीं करेगा तुमको, जाके उस पे यूट्यूब को फॉलो करो ना, यूट्यूब पे तुम्हें सब ठीक है सर। तुम उसको फॉलो करोगे तुम्हें मिल जाएगी, तुम उसको देखो और तुम बार बार एक लेक्चर को 1 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा, 10 दफा देखो। तुम एक दफा पिक कर लिया ना तुमने, फिर तुम निकल जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये एक्सक्यूज दिया कि यार मैंने पढ़ा मुझे समझ नहीं आया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक अभी इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त बात हुई ऑफिस में ना, और सर ये वही बात होगी ना कि जो बच्चे निकलने वाले होंगे वो निकल जाएंगे और आपकी एक टीम बन जाएगी। नहीं देखो, ये बात नहीं है यार, अगर ये बात होती ना तो मैं यहाँ बैठकर जो है ना इतना टाइम जाया नहीं करता। ठीक है ना, सही। जिनको जिनको सवाल पूछना होता है ना वही यहाँ आते हैं, मैं तुम लोग के लिए बैठा हूँ। जिनको सवाल जो तेज होते हैं ना यहाँ कोई नहीं बैठता, कोई बैठता है यहाँ पे? ऐसे ही क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, तुम देखो यहाँ सूरत अल कसस कल एक बात कर रहे थे हम लोग, मैंने ऑफिस में एक बात की, एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं यहाँ पर ना सी लेवल का ऑफिसर हूँ और मुझसे ये लोग इस तरह से बात करते हैं, फलाना फलाना ये वो सब कुछ ना। तो मैंने इसको ऑन द स्पॉट मैंने कहा आज किसी को मैं फायर करूंगा, मैं बहुत सख्त बॉस हूँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। ठीक है ना, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। ठीक है ना, मैंने कहा ये उमर बिन खत्ताब की शरिया है, कि अबू बकर सिद्दीक है, ये रखी हुई है, बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है ना, मैंने उसको आयत पढ़ी कुरान की। ठीक है ना, ये कुरान की आयत है, ये जो है ना सूरत अल क़सस के अंदर है, इसमें फरमाया श्योरली यू कैन नॉट गाइड हुएवर यू लाइक ओ प्रॉफिट मोहम्मद, बट इट इज अल्लाह हु विल गाइड हुएवर ही विल्स एंड ही नोज द बेस्ट हु आर फिट टू बी गाइडेड। मैंने कहा ये पता है अल्लाह ताला के किसके लिए आयत उतरी थी? यह आयत पता किसकी उतरी थी? जाओ तफसीर पढ़ो उसकी तरह। ये उतरी थी अबू तालिब के लिए। अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं भाई कलमा पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, वो कलमा नहीं पढ़ते। अबू जहल खड़ा हुआ, अच्छा अबू तालिब, हाँ ठीक है ना, नहीं पढ़ रहे थे, कलमा नहीं पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा, मैंने कहा मैं अल्लाह से माफी मांगता रहूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत दिया। सही सही बेशक। तो मैंने कहा कि भाई वो बाहर चला गया। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसको देखा कि वो दोज़ख के एक लेवल में जल रहा है और उसकी पनिशमेंट क्या है, टखने तक उसकी फायर आ रही है और दिमाग उसका पक रहा है। उसकी सजा थी, he made a mistake। ठीक है ना, he made a big mistake। so the point is, मैंने कहा कि यार देखो it doesn't matter who you, मैंने कहा उसका लेवल कितना था, उसका लेवल बहुत ज्यादा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप देखो, नूह अलैहिस्सलाम के बाप को देखो, मैंने कहा सबके बाप आए ना, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो मैंने कहा अल्लाह ताला लिनियज और ये टाइटल ये सब चीजें नहीं देखता, मैं ये चीजें नहीं देखता कंपनी में, मैं ये देखता हूँ बंदे ने काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल मेहनत तुम्हारे काम की वजह से नुकसान हो रहा है, मैंने कहा तुम्हारी एक मिस्टेक की वजह से। सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है ये वो ठीक है, मुझ में भी कोई खामी है। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुमने कहा ना वो लोग ज्यादा निकल जाएंगे आगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, वो आगे निकल जाएंगे। भाई तुम क्या बात कर रहे हो, अल्लाह है ना तुम्हारे साथ। ठीक है ना, बेशक बिल्कुल तो है। फिर तुम किस बात पे? हाँ अगर तुम जरदारी और नवाज शरीफ की बात करते हो तो वो तो वैसे ही खराब है सारे। नहीं सर ऐसा नहीं, ये तो पाकिस्तान में बैठे सब जानते हैं क्या है क्या नहीं। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा सर आप काइंडली ऐसा करें ना कि अगर आप कुछ फेवर कर सकें, यानी कि अपना नंबर नहीं, आप किसी बंदे का नंबर दे दें, कोई मसला हो तो मैं उसके साथ डिस्कस कर लिया करूं। देखो जो टाइम गाइड कर दिया करे। तुम्हें लेकिन सर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसे ना कैसे करके सिर्फ एक काम करो, तुम सिर्फ पाइथन प्राइमर लिनक्स प्राइमर अल्फा बेटा, लिनक्स प्राइमर अल्फा ये खत्म कर लो और CSS की पढ़ लो और सिसऑप्स पढ़ लो। अगर तुमने ये सब पढ़ लिया ना, बाय अल्लाह मैं तुमको कह रहा हूँ तुम्हारे सारे काम आसान। तुम बोलोगे अब मुझे समझ आ गई क्या हो रहा है। तुम सिर्फ सर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे स्टडी करें,
तो इंशाल्लाह अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं फिर उनसे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने अपना मैं काम भी करना मैं लाइव है। क्लासेस में बैठना शुरू हो जाऊंगा। मैं लाइव क्लासेस में बैठा होता हूँ। इस सैटरडे को मेरी लाइव क्लास है, बैठा हूँ मैं। ठीक है सर। उसमें मैं एडवांस टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तुम पीछे से करते हुए आओगे, तुम्हें आसानी होगी। तुम करो तो सही, तुमने अभी शुरू किया है, अभी तो तुम शुरू आए ठीक हो, है सर। शुरू किया है ना। ओके ठीक है? ओके। ये बात याद रखो, अहमर अली नाम है तुम्हारा, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर। हजरत अली फरमा रहे हैं उमर बिन खत्ताब को कि यार तुम सर सॉरी सर, मेरा नाम समर अजीम है, ये ईमेल मेरी इस नाम पर बनी हुई है, व्हाटएवर द केस। समर। समर अजीम, बात ये है कि ना, हजरत अली उमर बिन खत्ताब से कह रहे हैं कि तुम इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो कि हमारे आने के बाद वो हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम में कामयाबी सारी जो है ना, अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि उसने क्या किया, क्या उसका स्टेटस है, कितने पैसे हैं। ऐसा होता तो जरदारी, नवाज शरीफ, भुट्टो, इनसे ऊपर तो कोई भी नहीं जा सकता। ये सब गलीज मुर्दार लोग हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला के नजदीक ये इंपॉर्टेंट है कितना, कौन तकवेदार है। अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी ना, मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर मैं समझ रहा हूँ कि मैं सिर्फ अमीरों की गाइड करने के लिए बैठा हूँ, नहीं। एक और सूरत उतरी थी, उनका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला इब्न अल मखतूम, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पे उनकी एक सूरत उतारी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो नाबीना थे, वो बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ना एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा आप वेट करें, मैं जरा कुरैश के सरदारों को दावत दे रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरत उतार दी कुरान। अल्लाह ताला को अच्छे नहीं लगा। उन्होंने कहा ये काम के लोग हैं भाई, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हूँ यार। जिसको जो पैसे देता है वो बात भी नहीं करता, मुझसे जाके पढ़ता है, वो काम करता है, अपना काम कर रहा होता है। जी शेख साहब बोलिए, बोलिए शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मैंने कल जो है डेवऑप्स एंड सिसऑप्स एंड ब्लॉकचेन ट्रैक को साइन अप किया मैंने कल ही। तो अभी जो है मैं lms.nafi.com से एक्सेस कर रहा हूँ वीडियो कंटेंट। So is that the right URL or you said that I need to go to some old URL to access the content? नहीं नहीं, एक मिनट सबर। What did you bought? DevOps, SysOps and blockchain track. What is your name? कहाँ से आ रहे हैं? Where are you coming from? From US. Okay. You need to access, and you acquired this in English or Urdu? In Urdu. In Urdu, okay. आपने उर्दू में लिया था ना? Okay. आपका ईमेल एड्रेस जरा मुझे भेजें आप प्लीज। कब लिया था आपने? कल लिया सर। कल लिया है, ओके। मैं सर से देख के बताता हूँ। क्या नाम है आपका? किस ईमेल एड्रेस से लिया आप? cloudintown@gmail.com. Cloud in town, ठीक है, सही। I see you. Okay, ठीक है। So this is what you have to do. You would have been given access on the new cloud. Ilyas Sheikh, right? जी हाँ। Okay, you are in like Detroit, somewhere in Detroit, right? जी। ठीक है, सही। I can see you on the system. Okay, this is what you have to do. Okay, this is what you have to do. एक तो आप मेरा पहले नंबर लें ताकि मैं आपको फिर देखूं कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? जी ठीक है। एंड जैसे मैं आपको बोलूंगा आपने वैसे फॉलो करना है। अच्छी बात, ठीक है। एंड यहाँ इस नंबर पे अपना नाम लिखें, मैसेज करें, ईमेल अभी कर दें अगर तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सेव कर लूँ, फिर मैं सेव नहीं कर सकूंगा, मैं पढ़ नहीं सकता फिर मैसेज, ठीक है? ठीक है। और मैं फिर इसका जवाब दूंगा आपको। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज के आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है मैं आपको बताऊंगा आपने क्या फॉलो करना। जी। So I will give you. So start from the first thing you have to do is go to the, मैं आपको ओल्ड पोर्टल पे डलवाता हूँ क्योंकि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो पोर्टल हमारा वीडियोस का पोर्टल होगा और न्यू पोर्टल सिर्फ लैब्स का होगा। सो वी आर सेगमेंटिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मगर आप जाकर शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम पाइथन प्राइमर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। व्हाट इज योर बैकग्राउंड? क्या करते हैं आप? Initially I was a system administrator. फिर So उसके you are बाद system administrator. Okay. You're on उसके the बाद में मैं SAP एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। अभी जो है मैं क्लाउड सिक्योरिटी कर रहा हूँ। अभी किसी टीम में क्लाउड सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं? कंप्लायंस है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन? मोस्टली विद इन द एश्योर कंप्लायंस साइड। एश्योर कंप्लायंस है, ओके ठीक है। सो आपको यू कैन अप्लाई फॉर क्लाउड आर्किटेक्ट पोजीशन, राइट? जी जी। So that is the goal. That's what I want to expand my skills of DevOps and blockchain and apply for higher positions. बहुत जबरदस्त यूज केस है आपका। आप बहुत अच्छी
अच्छी 6 फिगर्स में, 175, 180 पे जा सकते हो। व्हाट इज योर सैलरी राइट नाउ? Around 150. हाँ, मतलब कि आप इससे ऊपर जा सकते हो अगर आप पहले से, मैं तो सिस्टम एडमिन तो नहीं हो ना, फिर तो आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो। जी हाँ, सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी. तो फिर आप 2 तक जा सकते हो। Okay. And the path for that is to DevOps and blockchain. आपको प्रोग्रामिंग आती है आपको? मैंने बैचलर्स में किया, बट आई एम नॉट हेवीली कैसे हो? जी इंडिया से हो ना? जी हाँ, इंडिया हैदराबाद. हाँ, इंडिया हैदराबाद, हाँ वो बोली से पता चल रहा है। अच्छा, एक काम करें, आप सबसे पहले काम ये करेंगे, आप सबसे पहले लिनक्स आती है आपको? जी हाँ. आप सबसे पहले जो ना पाइथन प्राइमर अल्फा बीटा, लिनक्स प्राइमर और ना अल्फा करके बैश, फिर बैश पे चले जाएं, ठीक है? जी. मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ना, आपने इसी तरीके से इन कोर्सेज को फॉलो करना है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, फिर मैं आपको वो भी मिल जाएगा, एक पूरा वो भी मिल जाएगा पढ़ने का। आपने सबसे पहले ये फॉलो करना है। लिंक्डइन का तो कोर्स आप देखें ताकि आपको पता चले कि आपको उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। फॉरेन से आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने ये कोर्सेज करने हैं, ठीक है ना? लिनक्स प्राइमर अल्फा लेवल 2, पाइथन प्राइमर अल्फा बीटा, गैमा कर सकते हैं, ठीक है, सही नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है। पाइथन ऑटोमेशंस, बैश और CSSP। ये करने के बाद ना फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने रैल इंटेंसिव, और फिर इसके साथ साथ डेवऑप्स में आप यहाँ पर वो बैश और ऑटोमेशन तो कर ही रहे होंगे क्योंकि वहां से भी वहां पर हो रहा है। तो यहाँ डॉकर डीप डाइव ना, तो कितना टाइम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए? Around 3 hours every day. बहुत है, ठीक है, सही है। अब एक काम करो, पहले आप एक चीज जो मैंने आपको बताया ना, पहले वो करके आओ, मुझे अभी मैसेज कर लो ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। अच्छी बात, ठीक. पुट मी ऑन द जॉब इंशाल्लाह। चेंज कहाँ पर, अभी किधर काम कर रहे हो? अभी Lennox International, it's मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये वहाँ सारा मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है, उधर ही रहना है या बाहर निकलना है, क्या करना है? No, I'm pretty much open for remote jobs as well. अच्छा, रिमोट जॉब्स वैसे ना, ठीक है, सही। तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ एक अच्छी जॉब के लिए, अभी कोर्स कर लो, फिर मैं आपको, मगर उसमें ट्रैवल है, अगर ट्रैवल करना है US के अंदर ही ट्रैवल है। अच्छा. ओके. US के अंदर ही है, कहीं इधर तो नहीं, अभी US में जाओगे अगर करना है तो। जी. अच्छा, ठीक है. And the other thing the other question I have, live classes ये जो होते हैं, इसका शेड्यूल कहाँ पर होता है? पोर्टल में दिया हुआ है, आपको वेबसाइट पे भी नजर आएगा। अगर आप हमारी alnafi.com पे जाएंगे, आपको सारी चीजें नजर आएंगी वहां पर, दिखा देते So the live classes are more tied to the courses follow-up, or they are follow-up and then also build upon further information as well, right? So live classes के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, success stories, events, live classes schedule. So check that schedule and follow that schedule. That schedule is updated accordingly. ठीक है, जो नई नई डेट्स आती हैं तो पूरे मंथ की डाल देते हैं। EST में होगा तो आप EST में ऑलरेडी हो तो आपके लिए आसानी है। जी, ठीक है। तो ये क्लास आपको लेनी है, आपको ये क्लास भी लेनी है अली के साथ, वो 5:30 PM है, AM है EST की, ठीक है, टाइम थोड़ा डिफरेंट है, इसका 1 AM EST है, ठीक है, टाइम तो देखिए। are these classes recorded? रिकॉर्डेड भी हो जाती है, रिकॉर्डेड भी। So and where do I access these recordings? yes, you will have access to the recordings as well, ठीक है। So where do I access these recordings? जैसे यहाँ पर खालिद साहब तुम बैठे हुए थे ना, खालिद, देखो ये तुम्हारा कोर्स है और मैं इस कोर्स के अंदर, इस पोर्टल में के अंदर बैठा हूँ। इस कोर्स के अंदर यही चीजें हैं जो तुमको पढ़ा दी हैं खालिद। तो जैसे ये कोर्स है, लाइव सेशंस यहाँ पर, यानी कि इंपॉर्टेंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, लिनक्स फंडामेंटल्स, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, उसके बाद कंग्रेचुलेशन, फिर लाइव रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर है। अच्छा। यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है, लेकिन बाकी जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं वो फॉर सम रीजन यहाँ आ नहीं रही थी, बट दे हैव स्टार्टेड पुटिंग इट हियर एज वेल, सो यू विल सी ऑल द लाइव रिकॉर्डिंग्स हियर। और इनकी जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब आपको, ये सारी लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर सारी, ये बहुत सारी नई चीजें कवर कर रहा है, तो सारी चीजें उसमें कवर्ड अप होंगी। सो यू विल कवर ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर। आप मैसेज कीजिए मुझे इलियास शेख, आई वुड जी लाइक हाँ, जरूर सर। ठीक है ना। अब्दुल मुताहिर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी।
और मेरा तो पहला सवाल जो है वो शायद आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वो शायद बस मजाक भी है थोड़ा। वो ये सर कि मैं इंडीड पे जॉब सर्च कर रहा था ट्रक ड्राइवर का यूएसए में, तो सर उसका तो सैलरी तकरीबन डेवऑप्स इंजीनियर का बराबर है। अगर तुम समझते हो कि तुम ट्रक ड्राइवर इतने आराम से बन जाओगे यूएस में, और जी तुम समझते हो कि वो बड़ी अच्छी जॉब है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी कोताही है। अगर तुम जी समझते हो कि वो ट्रक ड्राइवर की जो जॉब है वो बड़ी जबरदस्त है और मैं बड़े अच्छे पैसे कमा लूंगा, तो पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं मालूम। और दूसरा ये कि तुम ये सोच रहे हो कि यार उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो ये भी अगेन मुझे नहीं पता है, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर बहुत हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहॉलिंग ट्रक कहते हैं, उसमें बड़े बड़े पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी ये काम करते हैं, तालीम होती नहीं है। पेशावर के लोग, पेशावर के लोग ये काम करते हैं। सिख बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी टफ हैं। प्लस ऑटोनमस ड्राइवर जो हैं, ऑटोनमस ट्रक ड्राइविंग जो है वो बहुत जल्दी ये जॉब्स खत्म कर देगी। जाओ पढ़ो जरा। तो अब तुम पता नहीं किस जगह पे रहते हो, मुझे नहीं, अगेन नहीं पता। तो अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो फिर बड़ी अजीब सी बात है ना, मतलब कि ठीक है ना। तो अगर तुम्हें ट्रक ड्राइवर बनना है और उसी पे काम करना है तो यार ठीक है, सही है, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये तुम चीज फिर जाके देखो उसके ऊपर। और इतने आराम से ट्रक ड्राइवर की पोजीशन मिलती ही नहीं है भाई, टेस्ट होता है, ये होता है। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवर की सैलरी है, जो ट्रक ड्राइवर की एवरेज सैलरी जो है 54,000 है। तो अगेन तुमने पता नहीं क्या पढ़ा है, वो कौन सा ट्रक है, पता नहीं, हो सकता है कि वो कोई स्पेशल ट्रक हो जिसका मुझे नहीं मालूम। ये इनकी लो और मेडन इस तरह की होती है, पर आवर सैलरी ये होती है, ठीक है ना। लो कितनी है, मेडन कितनी है एवरेज, और हाईएस्ट जो होती है उनकी कितनी होती है। लॉन्ग हॉलिंग जो करते हैं ड्राइवर्स, उनकी क्या सैलरी होती है, ये लिखा हुआ है कनाडा के अंदर, ठीक है ना। इन यूएसए अगर लिखो तो वो भी इतना ही फर्क नहीं है। और इनको कंपनी ड्राइवर को पर माइल के हिसाब से क्या पैसे मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये बहुत मुश्किल काम है। और ट्रक ड्राइवर जो है, ठीक है ना, और ऑटोनमस वर्सेस ऑटोनमस जो ट्रक्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे आ रहे हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स जो है ना, वो इसके ऊपर पूरा वो है, ठीक है ना। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स ऑलरेडी इस पे आ रहे हैं ना। टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे, क्योंकि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेशन जो है ना, वो ट्रक ड्राइवर का काम आसान कर देगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रक ड्राइवर फारिग हो जाएगा, नहीं, मगर ट्रक ड्राइवर स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो वो होगा ना, उसके पास डेटा ज्यादा होगा कि यार यहाँ से कहाँ से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, शॉर्टकट कहाँ से करना चाहिए, किधर से मैं कट लूंगा तो क्या होगा, बस वो बैठा होगा। तो वो जो उसका जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है ट्रक में, वो कम हो जाएगा। जैसे हमारे बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो उनको शायद गाड़ी चलाने भी ना पड़ेगा, ऑटोनोमस गाड़ियां होंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो उसके लिए लेकिन तालीम चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो तालीम नहीं है तुम्हारे पास तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जरा जाओ, जरा बैठ के पढ़ो कि भाई पोछा मारने वालों की, इनकी जॉब सब चली गई हैं, तो अगले 10-15 सालों में इनकी जॉब्स भी चली जाएंगी। ऑलरेडी हो रहा है ये। ऑटोनमस ट्रक्स जो हैं फैलते चले जा रहे हैं, और ऑटोनमस गाड़ियां जो हैं वो जो है ना बहुत तेजी के साथ आ रही हैं। वो फौरन से रिप्लेस नहीं करेगा, अगले 10 साल तक टाइम है। क्यों? क्योंकि डेटा जमा कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग डेटा। जब इनफ डेटा आ जाएगा कि उससे मॉडल से मिस्टेक ना हो, देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग इट, फिर लोग बाहर होंगे, ठीक है ना। ये असल मतलब कि वो है। तो कोई भी चीज पढ़नी हो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ा करो सही तरीके से, क्या है। जी अरसलान, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जी बोले। अच्छा, मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। ज़ीशान उस्मानी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था आपका ये जो सेटअप था। मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने रब्ता किया, और एक मुझे लगा कि शायद वो पहले भी एक लड़के का सवाल था कि एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता, या हमें इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एक मैं हूँ कम्युनिकेशन डिज़ाइन का बंदा, मुझे तकरीबन 21 से 22 साल हो गए हैं अपनी फील्ड में, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में। तो थोड़ी सी वेबसाइट भी मुझे ऐसी लगी नहीं थी उस वक्त, अब तो चेंज हो गई है। तो लेकिन यह है कि कोई थोड़ा सा होता है दरमियान में, ऐसे गैप्स आते हैं कि थोड़ा सा झिझकता है इंसान कोर्स लेते हुए। अच्छा, मैं क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट ये कर देता हूँ कि मैं मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं ना।
जी जितने इंसान पैसे देता है ना उसके हिसाब से उसको चीज मिलती है, उसके हिसाब से मैं वो करता हूँ। मैंने $1 मिलियन लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था। जी तो अगर तुम समझते हो कि तुम्हें ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह वेबसाइट चाहिए, और तो फिर तुम ऑक्सफोर्ड वाली फीस भी दो, 35,000 पाउंड सालाना लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो। जिस हिसाब का तुमने नाम लिया वो मेरे पास काम नहीं करते, अब फारिग कर चुका हूँ मैं उनको, ठीक है। बट द पॉइंट इज के इट टेक्स टाइम टू ग्रो एंड इट टेक्स टाइम एंड इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अपॉन द फाउंडेशंस, ठीक है। सो जैसे जैसे पैसे आते चले गए, हम लगाते चले गए, उस पर इम्प्रूव करते चले गए, क्योंकि मैं अपने $1 मिलियन जो है ना वो 2 साल में पूरे लगा चुका था। कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। कम्युनिकेशन डिजाइन पे हमारे पास अभी जो UI UX का बंदा आया है वो बहुत अच्छा बंदा है, काम कर रहा है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले सब काम कर रहे थे। तो कंपनी ने ना एक क्योंकि तुम मुझसे सच बोलोगे ना, सच पे बात करोगे, मैं तुम्हें सच, मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियो कोई लीक कर देना, उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ मैं सबके सामने बात करूँ, ठीक है। मेरे पास बड़े लोगों की रिकॉर्डिंग्स है, तो मैं जो बोलता हूँ ये बाहर करूँ, तो कहते हैं हाथ पाड़ो। तो मैंने कहा फिर तुमने क्यों इस तरह की बात की थी। तो मैं जो चेहरा मैंने सामने यहाँ रखा है ना, वो मेरा घर में भी है, वो बाहर भी है, वो अल्लाह के सामने भी है, क्योंकि अल्लाह ताला को 2 चेहरे वाले पसंद नहीं है। तो भाई, तो कहने का आंसर ये है कि जो फीस होती है ना उसके हिसाब से जो ना काम होता है, लेकिन कंटेंट पे हमने कभी वो नहीं किया। बेशक हमने पूरा जान लगा के सब कुछ करके किया, और हम उसको इम्प्रूव करते चले गए। अब इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑटो स्केलिंग है। अब 10 मतलब कि 1 लाख बंदा एट अ टाइम वेबसाइट पे बैठ सकता है, 10 लाख बंदे ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी है, बिजनेस कंटिन्यूटी है। तुम लोगों से बहुत सारी लोगों को इनका पता भी नहीं कि क्या चीज़ है। तो वो सारी जो चीज़ें जो मैं करता आ रहा था ना यहाँ पर एज ए CISO, एज ए CI, एज ए CTO, अब मैं अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, बिकॉज अल्लाह ताला ने वहाँ ला के बिठा दिया है। तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो। तो रातों रात कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और जिसको कोर्स करना था वो करके बहुत आगे निकल गया, जिसको कोर्स नहीं करना था वो जो है ना उधर ही बैठा हुआ है। जिसको यहाँ आके पढ़ाना था पढ़ाकर जो है ना, और आगे चीज़ें उस मेयार पे नहीं कर सका, तो उसको हमने बाहर भी निकाला, दूसरे लोगों को भी ला के बिठाया। दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सो बातें करना बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी बहुत मुश्किल काम है। अब अब्दुल मुताहिर नाम है ना तुम्हारा, क्या नाम है? नहीं, अरसलान। अरसलान खान बाबर। जी अरसलान खान बाबर। तो बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट दैट इजी। यूट्यूब को चलाना बहुत आसान है, वीडियो बनानी है ना, और तुम एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाओगे। एडवर्टाइजमेंट हराम, इससे हराम पैसे हैं। अब कोई स्कॉलर की ओपिनियन ले आया कि नहीं, स्कॉलर ने कहा, कौन सा स्कॉलर कह रहा है, तो कुरान की आयत उठाओ और उसको कंपेयर करो। यू डोंट नीड अ स्कॉलर फॉर दैट। बट द पॉइंट इज कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू हलाल थिंग्स। दैट इज वेयर द अल्टीमेट टेस्ट इज। दैट इज व्हाई इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू बिकम अ यूनिवर्सिटी दैट वी आर अबाउट टू बिकम नाउ। अब बोले आप सवाल। मैंने जी आई वांटेड टू आंसर। जी दीदी, पहली बात तो ये है कि मैं आर्गू नहीं करता। मेरे मतलब मेन सवाल जो था वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि मैं आपकी सारी बातों से, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आया मैं ज़ीशान उस्मानी साहब के मुतारफ़ कराने पर ही था, ठीक है। अब वो आपने उन्हें क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये मुझे नहीं पता। बाकी रही यूज़र एक्सपीरियंस की बात वेबसाइट के हवाले से, तो आपके उस जवाब से भी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ही करूँगा। लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं जानता, आप बहुत कुछ जानते हैं, और मैं इसीलिए कनेक्टेड भी हूँ, कनेक्टेड सवाल रहता क्या भी है? हूँ कि मैं तो यहाँ पे कुछ सवाल क्या सीखना है? चाहता हूँ। क्वेश्चन, अगर तुम यहाँ आके क्रिटिक करने आए हो तो उसके लिए तुम ईमेल भेज दो, ठीक है ना, कि यार मुझे वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं लगती, आप इसको और अच्छा बनाएं, UI UX फ्रेंडली हो। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, करनी चाहिए। अभी हमारी इतनी इस्तात नहीं है, क्योंकि मैं सारे पैसे एक्रेडिटेशन में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं, अभी मेरे पास देखो, इंसान तरीके से काम करता है ना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, तरीके से करता है। समझदार आदमी हो, बड़ी उम्र के आदमी हो, बात करने से लग रहा है, ठीक है ना। तो इट टेक्स टाइम। और जिसका तुमने नाम लिया, जिसको क्यों निकाला, क्या निकाला, यूजर एक्सपीरियंस की वजह से ही निकाला। अगर तुम बात करते हो ना कि क्या हुआ, यूजर्स को ना वो चीज चाहिए होती है कि जिसको पढ़ाओ तो उसका काम हो जाए, जॉब हो जाए। अगर वो चीज वो नहीं पढ़ रहा और वो नहीं कर पा रहा, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बट एनीवे, रिगार्डलेस, उसके अलावा और दूसरे टीचर भी गए हैं यहाँ से, ठीक है। मैं हर चले किसी ठीक को हो बहुत गया। ज्यादा स्ट्रिक्टली एनालाइज करता हूँ कि उसका कंटेंट क्या है, व्हाट कैन ही अर्न फ्रॉम इट, व्हाट कैन दैट चेंज द पर्सन और नॉट। सिर्फ बातें करा के, किताब पकड़ा के नहीं कराना होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, बोलिए, मेरा सवाल क्या है आपका? सवाल आपसे आपको पढ़ना है, नहीं करना है, क्या करना है? आई मीन इफ यू आर हियर टू जी, प्रोवाइड अस के
यार ये रिपोर्ट मैं GTX की रिपोर्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ, स्लो टाइम है, ये है वो है, फिर मैं आपको बोलूँगा जाओ QA ऑप्स वालों से बात करो या डिजाइन ऑप्स से बात करो। अभी सवाल क्या है, मेरा सवाल बताओ मुझे। जी, सवाल मेरा ये है कि एक तो मैं 40+ हूँ, तकरीबन 43-44 ईयर्स मेरी एज है, 21-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया एडवर्टाइजिंग का। अच्छा मतलब वो चलता रहा है, लेकिन अब तकरीबन कोई 2 साल से मैं को थोड़ा सा फेडअप हूँ अपने मतलब कुछ मामलात की वजह से। मैं लर्न तो हमेशा साथ साथ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी में भी मतलब मेरा इंटरेस्ट ज़रूर मौजूद है, लेकिन एक BSc डबल मैथ फिजिक्स वाला बंदा जो कि बाद में डिजिटल आर्टिस्ट बनता है और 21 साल के बाद क्या वो डेटा साइंटिस्ट और AI में कर सकता है अच्छे तरीके से? ये मेरा एक सवाल था, क्या आपकी तरफ से रिकमेंडेड है? मैं अब एक इसका बड़ा आंसर दूंगा, सो लिसन एंड लिसन केयरफुली, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि मतलब कि ना AI को दिखाता हूँ कि AI क्या है ना, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा होती हैं बट जब काम होता है तो काम बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। जी सो ये मैं जो खोल के दिखा रहा हूँ इसका नाम है, इसको ChatGPT 3 है, सब चीजें ठीक है, सही है, आई मीन इट्स देयर। उससे दूसरे लोगों की जॉब्स इम्पैक्ट होंगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग काम करते रहेंगे। ऑटोमेशन जॉब्स को चेंज करेंगे, नेचर ऑफ जॉब चेंज होगी, ठीक है ना। जी सो ये जो है ना डाली एक चीज है, और इसमें मैं आके यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। नाउ बेयर विथ मी एंड आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, व्हेन आई से समथिंग आई स्टिक टू इट। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सो अल्ताफ हुसैन, ठीक है ना, जी नवाज शरीफ, ठीक है ना, एंड जरदारी, ठीक है ना, एंड और कौन होगा इसमें, कॉमा कॉमा डाल के करते हैं ताकि इसका वो इसकी ये डाली जो है ना एक अलग चीज है, इसमें आप कुछ भी लिखे हैं, ठीक है ना, तो वो करता है। एंड फॉर एग्जाम्पल इमरान खान, इस मामले में मैं इसको थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, है टेढ़ा नहीं वो भी, सीधा नहीं है वो भी, ठीक है ना। मैं उसको इस्लामिक उसूलों के हिसाब से करूँ मैं तो उसकी बात नहीं करूंगा, फजल लेकिन रहमान कर दें। फजल रहमान तो मैं बिल्कुल खामखा डालूंगा, ठीक है अच्छा ना। ठीक है। तो फजल रहमान, FAZLUR रहमान, ठीक है ना, ठीक है ना। राइडिंग अ पिग, बिल्कुल, जस्ट गो बैक टू द ब्रास टैक्स, राइट। ये जनरेट करेगा इमेज, ठीक है ना, तो ये इमेज जनरेट करेगा, बताएगा आपको कि क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी के डाली जो है जिसके बारे में बड़ा कहा जा रहा है कि फलाना फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, देखेंगे ये इसने बनाई, ठीक है। सो AI जो है ना, इट टेक्स टाइम। अब डाली के बारे में बड़ा मशहूर है, ठीक है ना, और बड़ा नाम लिया जा रहा है कि यार फलाना है, ऐसा कर लेगी, ऐसा कर लेगी, ठीक है ना। सो AI को टाइम लगेगा, हाँ। अगर मैं लिखूं, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी पंक, मतलब कि यू हैव टू राइट डाउन द राइट वर्ड्स ना, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लेइंग, ठीक है ना, या यूजिंग कंप्यूटर हैक, ठीक है ना, अ बैंक, और उसके बाद मैं लिखूं यहाँ पर 90s, ठीक है ना, कार्टूनिश, ठीक है ना, पिक्चर। So let's see के वो क्या करते हैं ना, देखो देखो, an oil pastel drawing of an annoyed cat in a spaceship। तो इस तरह की चीजें बनाना आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू वो करना, देखो उसको बड़ा टाइम लगा इसके ऊपर। इट्स ट्राइंग टू पीस अप ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो ये AI है, दिस इज AI, ठीक है। AI इज ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्री। देखो अब ये इसने बनाई है, पंख, साइबर सिक्योरिटी पंख लिया उसने, कंप्यूटर के सामने बिठाया, 90s का कंप्यूटर आ गया, ठीक है, वो कर लिया, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम फॉर AI टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ChatGPT 3 भी इसी तरीके से है, उसमें कुछ खास चीजें हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या आपकी जॉब खतरे में है?
आपकी जॉब ऑलरेडी खतरे में है, बिकॉज क्लाउड के अंदर जो कंपनीज हैं जैसे प्रोमो है, कैनवा है, दूसरी हैं, दे हैव मेड एवरीवन इनटू अ डिजाइनर. क्या वो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं? नो. आपकी तरह आ सकते हैं? नो. बट कैन ऑर्गेनाइजेशन यूज देम बिकॉज दे हैव टू पे लेस? यस. ठीक है ना, ये चीज हो गई. तो तुम्हारी जॉब जो है वो इम्पैक्टेड है. अगले 4-5 साल में क्या होगा आई डोंट नो. क्या बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा? यस, बिकॉज द वे ओपन एआई जो है, ओपन एआई क्यों है, ये बड़े तेज हैं, इन्होंने फ्री रखा हुआ है. क्यों? बोले आप आओ लिखो लिखो, ये बिकॉज इट नीड्स डेटा सेट्स, ठीक है ना, टू लर्न. ठीक है ना, तो इट्स लर्निंग, इट्स गोइंग थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस. तो इट टेक्स टाइम. अगर इंसान का ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें जो चीजें हैं और उसके अंदर जो उसकी मेमोरीज आती हैं, अगर मैं उसको किसी डेटा सेंटर में कंप्यूटर पे रखूं तो मुझे हजारों की तादाद में स्टेडियम्स की जरूरत होगी. नेशनल स्टेडियम है ना कराची में, जैसे कराची में एक नेशनल स्टेडियम है, या जो बड़े स्टेडियम्स हैं, इस तरह की स्टेडियम्स की जरूरत होगी जहां पर हजारों कंप्यूटर्स चल रहे हैं और उसमें हार्ड डिस्कें बड़ी बड़ी लगी हैं और डेटा जमा हो रहा है. ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी कैन डू. दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन दोस थिंग्स. ठीक है, उसके बावजूद भी वो इतना स्मार्ट नहीं हो. सो इट टेक्स टाइम. नाउ ऑटोमेशन वो चीजें जो मंडेन टास्क हैं वो उसको खा जाएगा. जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है ना, हम इसको टेस्ट कर रहे थे अन्नाफे के लिए. हमने कहा यार ठीक है ना, अन्नाफे का लिखो. ठीक है ना, सो देखो मैंने कहा भाई अन्नाफे टीचिंग स्टूडेंट्स द स्किल्स दे नीड फॉर ग्लोबल जॉब. देखो अजीब से उसने तस्वीरें बना दी. ठीक है ना, देखो कंप्यूटराइज उसने वो किया. ठीक है, फिर मैंने लिखा कि साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल जॉब्स. ठीक है, सो इट्स नॉट देयर, इट इज स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वो. हाँ मैं ये लिखूं उसमें, ठीक है ना, लिख देता हूँ इमरान खान ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ. ठीक है ना, अगर ये लिखूं तो देखो उस पर क्या आता है, बीवर बना आ गया. ठीक है, कैपी काबरा, कैपी बेरा जो होता है, जो ब्राजील में होता है, बड़ा सा रोडेंट होता है, उसका बना दिया उन्होंने. ठीक है, तो शाम खा जाता है, बस ये देखिए उन्होंने सही दिखाया है. ठीक है, तो देखो इन्होंने बना दिया. ठीक है ना, तो ये दिस इज द रियलिटी ऑफ बेसिकली वो ना. ठीक है ना, ये मुस्लिम्स, ठीक है ना, अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है ना, नॉट फॉलोइंग इस्लाम. देखो कंप्यूटर्स के बारे में क्या सोचता है. बट द पॉइंट इज के इट विल टेक टाइम. हाँ, आपको क्या करना चाहिए, यू आर एट द एज ऑफ 43-44, यू स्टिल हैव 20 more years, 25 more years to work within the industry if you want to work. ठीक है ना, देखो किस तरह से उन्होंने बनाया. ठीक है, अभी तो एआई को भी चाहिए टाइम. एआई नीड्स टाइम. ठीक है ना, तो एआई अभी टाइम लगेगा. जो आपको एआई के बारे में लोग बताते हैं, बोलते हैं मेरी किताब ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बड़ा फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा. क्या आपको एआई में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए. एआई में क्या काम है, काम क्या है? कभी किसी से पूछो यार तुम एआई में क्या करते हो, एआई की जॉब्स जरा जाके देखो मार्केट में जॉब्स क्या है, वो क्या मांग रहे हैं, आपको पता चलेगा. ठीक है, अगर आप एआई का ट्रैक देखते हो जो हमने पढ़ा है एआई में, एकेडमिक चीजें सबको आती हैं. ठीक है ना, हमारे पास लम्स के बच्चे हैं जिन्होंने इस पे काम किया है. ये डॉक्टर सालिया जो है एआई के अंदर काम कर चुकी हैं. ये इनका 20 घंटे का कोर्स है. ये इन्होंने बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ा है, यूएस में भी, पाकिस्तान में भी, आईबीए के अंदर भी, सब जगह इन्होंने पढ़ा है, सब जगह. ठीक है, उसके बाद फिर ये कुछ और हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, और फिर ये डॉक्टर यासिर के कोर्सेज हैं. ये एकेडमिक टच है आपके पास. इंडस्ट्री का टच ये रहा. यू शुड नो इंडस्ट्री एआई को ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज कर रही है, रिकग्निशन के लिए यूज कर रही है. ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रही है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज कर रही है, टेक्स्ट एनालिटिक्स के लिए यूज कर रही है, रिकग्निशन यानी पिक्चर्स को रिकग्नाइज करना. ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, इसके लिए यूज कर रही है. ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है. इसमें अकाउंटिंग है, इसमें फाइनेंस है, इसमें बिजनेस है. दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें एआई नहीं आ रही. आपके फील्ड के अंदर, डिजाइन के अंदर भी देखें एआई आ गई ना. क्या ये इंप्रूव हो जाएगी? हाँ, जिस हिसाब से लर्न कर रही है इंप्रूव हो जाएगी. 2-3 साल में बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप बोलोगे यार कोई मसला ही नहीं है, जाओ लिखो उसके ऊपर, निकालो यार, अभी आ जाएगी सब चीज. यू विल सी इट एंड यू विल बी सरप्राइज कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, दिस इज अमेजिंग. ठीक है, सो थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग. विल दे इम्पैक्ट
the jobs, yes, they will impact each and every sector. But AI is there to assist you, ठीक है ना, to make things easier for you, not to make things वो. It will make things much more productive, much more वो ना, तो इस पे काम ज़्यादा होगा. तो अगर आपको काम करना है और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? अब सवाल ये कि यार मैं चलो AI एस्टैब्लिश हो गया, AI आ रही है, बहुत मसला है, ठीक है ना, और मुझे वो जी AI और डेटा साइंसेस दोनों के हवाले से सवाल मेरा. डेटा साइंस जो है ना, डेटा साइंस अगर तुम सिर्फ डेटा साइंस पढ़ के जाओगे तुम कुछ नहीं कर सकते. अगर तुम्हें इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पता, डेटा कहाँ से आता है? अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास 2 फरिश्ते बिठाए और कब्र में वो 3 सवाल अलग होते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलग चल रही है. क़यामत के दिन अल्लाह ताला 5 सवाल खड़े होकर अलग कर रहे हैं, फिर सबकी किताबें उनके ऊपर फेंकी जाएंगी, वो आसमान से किताबें उड़ के आएंगी. इसके हाथ में सीधे हाथ पे आएगी वो बच जाएगा, इसके उल्टे हाथ में आएगी वो बस अपना हाथ चबा रहा होगा. यानी कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया हाथ चबाएगा, ठीक है ना, दोनों हाथ चबाएगा, यानी कि चू करेगा. अल्लाह, कुरान बड़ी ग्राफिक किताब है. कुरान की आयतें लिखो ना यहाँ पर, मैं देखना चाहूंगा AI इसको क्या समझती है, क्योंकि AI के अंदर मजे की बात है, डॉक्टर असद जमान इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़ी एकेडमिक और ना इस्लामिक रिसर्च है. AI सारी कैपिटलिस्टिक मैथमेटिक्स एंड मॉडल्स यूज कर रही है. देयर इज नो इस्लामिक एम्पैथी, देयर इज नो इस्लामिक साइंसेस इन AI. तो दुनिया की जो AI है, इट्स टोटली सपोर्टिंग the upcoming Dajjal and everything. That's a separate debate, right? इसमें बड़ी देखिए high level की वो है with facts and evidences, and you'll be surprised कि क्या होगा. But what I'm going to tell you is कि AI में अगर काम करना है, डेटा साइंस में काम करना है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट DevOps हो. तुम DevOps से स्टार्ट करोगे, कोड पढ़ना, कोड सीखना, बनाना सीखोगे, ऑटोमेशन सीखोगे, क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे काम करोगे, SysOps करोगे. ये तुमने अगर कर लिया, मैं 5 चीजें सबको बताता हूँ. DevOps करे, SysOps करे, एडवांसमेंट ट्रैक, फिर ब्लॉकचेन का करे, फिर AI का करे, फिर बिग डेटा और डेटा साइंस का करे. ये 5 चीजें कर ली, अगले 10, 15, 20 साल के लिए, 20 साल के लिए कम से कम उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता. पढ़ता रहना होगा उसको क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि अगले 50 साल तक इन टेक्नोलॉजीज की इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्रीज में होती रहेंगी. तो लोग जा रहे होंगे, नई लो जॉब्स आ रही होंगी. रीस्किलिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 1 बिलियन लोगों को ट्रेन करना है, 1 बिलियन लोगों को. तो ट्रेन इन्हीं लोगों को ट्रेन करके देना है ना जॉब पर. मैंने बहुत वीडियो भी दिखाई है. तो अगर आप कहते हो कि यार मुझे अपने आप को सेफ गार्ड करना है और मैं रिमोट काम करना चाहता हूँ या बाहर जाके काम करना चाहता हूँ, रिगार्डलेस कि तुम्हारा पीछे क्या लाइफ थी, तुम क्या करते थे, इट डजंट मैटर. इंडस्ट्री नहीं देखती इसको. इंडस्ट्री देखती है तुम्हें काम क्या आता है. यार काम आता है, चलो बैठो काम करो यार. दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. साल का एक्सपीरियंस, 2 साल, क्योंकि ये चीजें इतनी नहीं है, अभी लोग एक्सपीरियंस बना रहे हैं. तुम्हारे पास टाइम है इसमें काम करने का और स्टैब्लिश करने का. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. अगर तुमने ये कर लिया, ठीक है ना, तो वो तुम कर सकते हो बड़े आराम से. आई मीन देन देयर इज नथिंग. स्टार्ट करना या इन 5 चीजों का कोई एक जो सेशन किया था ना, उसमें मैंने बताया था, इंग्लिश में जब सेशन कर रहा था, वो रिकॉर्डेड हो गया. जापानी में सब जमाने में, चाइनीज में सबके पास जा रहा होगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द की थिंग्स. तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे लोग. देखो एक बात याद रखना, क्या नाम है, अरसलान खान, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने, डू नॉट फॉलो द लिविंग, फॉलो द डेड. ठीक है ना, किसी जानदार को फॉलो नहीं करो, फैसल साहब, फलाना साहब, फलाना साहब, फलाना, ये नहीं कह रहे. फॉलो द डेड, फॉलो द सहाबा. उन्होंने फरमाया, ताबी ने फरमाया किसको? बहुत बड़े सहाबी थे जिनका हमें जो कुरान में हम पढ़ते हैं ना, ये जो कुरान है ना मेरे सामने, ये कुरान, इसके 80 सूरतें जो है ना, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद की मुसहफ से आई हैं. अब्दुल्ला इब्न मसूद, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इन सब के मुसहफ को जोड़कर ये मुसहफ हमें मिला है. ग्रेट, इतना आसान नहीं है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि फॉलो द डेड, फॉलो द सहाबा. सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, फॉलो द सहाबा, बिकॉज दे वेंट थ्रू एवरीथिंग. ठीक है ना, दे वर द बेस्ट इन व्हाट दे डिड. नाउ इन द वर्ल्ड, whom you have to follow the person who's working in the industry. Ask him, what should I do? You know, I need to break in. वो बोलेगा जाओ डिग्री करो. मैं तुमको बताऊं, तुम बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, PhD कर लो, तुम कहीं काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई चीज बना नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एकेडमिक नॉलेज, तुमने इंडस्ट्री में काम नहीं किया. जब तक तुम इंडस्ट्री में कैसे काम करोगे? इंडस्ट्री में काम करना है, तुम्हें क्लाउड पे काम आना चाहिए. क्लाउड पे काम नहीं आता, तुम इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते. कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा. तुम्हें कहीं घुस जाओगे, आगे पीछे हाथ पांव मार के चलाकर खींच लोगे, टाइम कुछ टेन्योर खींच लोगे, लेकिन तुम फंस जाओगे एक जगह आके, तुम फंसोगे और फिर तुम एक्सपोज हो जाओगे. दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम. फिर तुम्हें कोई लेगा नहीं इंडस्ट्री.
मैंने देखा है, मैं सी लेवल पे बैठा हूँ ना, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है। सो तुम ये देखो भाई के, अच्छा, और तुम्हें यूट्यूब से, फेसबुक से, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट है, बिकॉज एवरीवन इज अर्निंग थ्रू इंटरटेनमेंट। जिंदगी में बात मुंह से निकालना बहुत आसान है। आज मैंने बताया ना तुम लोगों को कि कंपनी से मैंने 2 सीनियर लोगों को निकाला। एक ने कहा मैं सी लेवल का ऑफिसर हूँ फलाना, मैंने कहा बुला उसको, बिठाओ उसको, ठीक है, सबके सामने मैंने बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ वो काम करूंगा जो उमर बिन खत्ताब ने किया था साद बिन अबी वक़ास के साथ। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कौन CTO है, तो जरा जो भी है सी लेवल है, फलाना फलाना CFO, जो बैठोगे आप बैठो जरा। तो मैं CFO और CEO दोनों मिलके, फिर मैं CFO को अपने साथ बैठाता हूँ, CFO और मैं दोनों बराबर है, बिठा के मैंने बोला कि तुम जरा, तो मैं करता हूँ, सीधा करता हूँ, तुम्हारी गलती की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोग पैसे दे रहे, मैं दिन रात एक्रेडिटेशन पे काम कर रहा हूँ, तुम्हारी इस मिस्टेक से कितना नुकसान हुआ, लोगों को तकलीफ हुई, क्यों तकलीफ हुई, बाहर जाओ, शाबाश, अभी इसी वक्त बाहर उठ के जाओ, ठीक है। सो दीज आर द की थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। जिंदगी में बात करना बहुत आसान है, उसको डिलीवर करना सबसे मुश्किल काम। इसलिए मैं तुम लोगों को मशवरा दूंगा, अंडर कमिट करो, ओवर डिलीवर करो, आसान है तुम लोगों के लिए। मैं सबको बोलता हूँ ना, यूनिवर्सिटी में कहता हूँ नहीं आ जाएगी, मोरे राजा मोरे। सो मैं बोलता हूँ कि उसको मैं ही बोलूंगा कि भाई जब आ जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये अब देखो जब होने वाला है ना, बिल्कुल होने वाला है, बोला हाँ देखो ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से। दैट इज मच बेटर। अगर तुम्हें शुरू करना है, यू स्टिल हैव टाइम। तुम्हारा सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि तुम 3 से 6 महीने पे जॉब पे बैठे हो, डेवऑप्स की और सिसऑप्स की फील्ड के अंदर। उसके बाद तुम AI को पढ़ो, बिग डेटा को पढ़ो, तुम बोलोगे तो कुछ था ही नहीं, दिस इज नथिंग। मेरे पास लम्स के बच्चे आए हैं जिनको मैंने डेवऑप्स पे काम करवाया, उसके बाद उनसे सबसे एडवांस लेवल की मैंने AI की लैब्स बनवाई, उनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने कहा ये क्या किया हमने। अरसलान खान साहब सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। वो यंग फ्रेशमैन है, फ्रेशमैन, उनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने कहा ये हमारे साथ क्या हो गया, आपने क्या करवाया हमसे। मैंने कहा ये काम करवाया यार, तो बड़ा समझ नहीं, अब कह रहा हम कहीं नहीं काम कर सकते। मैंने कहा तुम लोग क्या करना है, काम यहाँ करना है या कहीं और जाना है। मैंने कहा यार मैं तुम लोग को 35,000 दूँ। उसने कहा आप फ्री में भी काम तो कराएंगे, मैं करूंगा, मैं कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि मैंने जो काम कर लिया, आई कांट गो एनीवेयर। मैंने कहा तुम अभी 35,000 पे हो, पार्ट टाइम पर हो, फुल टाइम पे 70 दूंगा, इसके बाद बढ़ा दूंगा तुम्हारी 3 महीने 6 महीने 6 महीने, हर 6 महीने हमारा वो रिव्यू होता है, अप्रेजल होता है। लेकिन मैं परफॉर्मेंस तो हर हफ्ते देख रहा होता हूँ। आई एम द मोस्ट ट्रिकेस्ट पर्सन इन माई कंपनी, यू डोंट नो मी अरसलान खान। तो इसलिए जो है ना, मैंने बड़े लोगों को निकाला है इन चीज़ों के ऊपर, बड़ी चीज़ों के ऊपर मैंने निकाला है। मैं जो तुम वेबसाइट की बात कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने उसके चीज़ों पे बड़े लड़कों को निकाला है। लोग आए झूठ बोलते हैं, लोग के 3 लाख तनख्वाह लेते हैं, 4 लाख लेते हैं, बोलते हैं हमें ये काम आता है, काम आता है। मुझे समझता रहा कि मैं बाहर से आया था, मैं समझता रहा कि यार सच बोल रहे हैं यार, आप बिठाओ उसको, बिठाओ, ठीक है बिठाओ, वो झूठ, वो दे वर जस्ट बाइंग टाइम। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा उमर बिन खत्ताब की तरह, मैंने कहा आई एम नॉट अ डिसीवर एंड अ डिसीवर कैन नॉट डिसीव मी, व्हाट आर यू डूइंग, काम कहाँ है तुम्हारा, और जी आज आ जाए, कल आ जाएगा। मैंने बाहर निकाला उसको, फौरन से बाहर निकाला। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं पाकिस्तानी स्टाफ जो है ना छोड़ दिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरा पाकिस्तानी स्टाफ है, अब मैं इंडिया से स्टाफ ले रहा हूँ, दूसरी जगह से स्टाफ ले रहा हूँ, क्या करूँ यार। इंडियन स्टाफ बहुत ईमानदार है यार, अजीब बात है यार, अल्लाह अकबर, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। एनीवे, सो यू हैव टू फॉलो SysOps, देन फॉलो along with SysOps you can follow DevOps, दोनों को साथ लेके चलो, एडवांसमेंट ट्रैक्स पढ़ो, you will be able to secure yourself. Whatever you're doing, continue doing that on the side. Your goal should be in the next 6 months sit on a job, a बड़ी जॉब, मोटी जॉब, अच्छी जॉब, या रिमोट काम कर रहे हो, रिमोट काम करो, ठीक है, बट मेक योर पाथवे आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। व्हाट फाइनल, क्या आखिरी क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मेरी ग्रेजुएशन है 2 दफ़ा। वैसे तो मैंने डबल मैथ फिजिक्स के साथ BSc किया था तकरीबन 2000 में, और उसके बाद मेरे कोर्सेज चलते रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। वो तमाम जो है मीडिया और डिज़ाइन के हवाले से थे, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के हवाले से थे, सर्टिफिकेशंस हैं काफ़ी सारी। वो पाकिस्तान में एक जो है ना भेड़ चाल चलती है, सब लोग आ जाते हैं। वो मुझे भी किसी ने बिठाया था, इशाम नाम है, क्या नाम है, ठीक है, श्याम सरवर, हाँ हाँ, इशाम सरवर।
तो मैंने बोला भाई मैं सच बोलूंगा, जो तुम काम कर रहे हो ना ये सब टू बी ड्रामा है। उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं तुमसे मुझे लाइव बुलाया ना, तो मैंने कहा यार मैं सच बोलूंगा, अगर किसी ने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा यार ये कोई दुनिया में नहीं करता, ग्राफिक डिजाइनिंग ये वो फलाना फलाना, तुम क्या करवा रहे हो बच्चों को? मैंने कहा तुम बच्चों को कुछ काम की चीज पढ़ाओ, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसने कहा नहीं आप ऐसी बात नहीं करें, ये बात नहीं करें। मैंने कहा भाई मैंने कहा तुम क्या बात, मैंने कहा गलत, दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा तो तुमसे अगर किसी ने सवाल किया, दिस विल यू विल गेट इनटू ट्रबल, सो मुझे मत बिठाना, डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन इफ यू कांट हैंडल द आंसर, ठीक है। सो उसने कहा ठीक है सही है। सो दैट इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट द पॉइंट इज दैट द पॉइंट इज के you have to be very careful. There's nothing wrong in terms of what you're doing right now, but is that the future? No. Eventually you will be replaced. Will it take 10 years? I don't know. Maybe 10, 15 years? Yes. Immediately, no. You can still keep on doing your gig. Yes, you can. But क्या वो change हो जाएगा? बहुत जल्दी change हो जाएगा. You will know. फ्रीलांसिंग में तो खैर मैंने काम नहीं किया, मैंने एडवर्टाइजिंग मेन कंपनीज में और कुछ टीवी चैनल्स में काम किया है, तो ब्रांडिंग मेरी मेन स्ट्रेंथ रही है, तो कुछ मुनासिब भी काम किया है, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा। असल में ये है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें हमेशा जूनियर और किसी हद तक सीनियर डिज़ाइनर्स की होती है। जब वो आर्ट डायरेक्टर का लेवल होता है तो वो हाईली पेड होते हैं, तो उनकी जॉब निस्बतन कम रह जाती हैं, और जो पिछले कुछ 2-3 साल से ट्रेंड रहा है, मार्केट रही है, उसमें जॉब भी कम हो गई हैं। और कुछ ये तो अल्लाह का निज़ाम है, क्योंकि दोज़ख में ना निचले उल्टा है, ठीक है ना, पिरामिड उल्टा है, ठीक है ना, और जन्नत में जो ना पिरामिड यूं है, ठीक है। सो लोअर लेवल पे बहुत लोग हैं, ठीक है ना, अपर लेवल पे जो ना बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। दोज़ख में लोअर लेवल पे ज्यादा है, अपर लेवल पे कम है, उल्टा है यार। अल्लाह अकबर, बड़ा खतरनाक मामला है, ठीक है। ये आधी से ज्यादा मुसलमान वहां बैठे होंगे, मुनाफिक है ना सारे, मुझे और मुनाफिक्स। फजलुर रहमान इज अ मुनाफिक। आई हैव द हुज्जा अगेंस्ट हिम बिकॉज़ आई एम बिकम, एक बड़ा मसला है। या तो मैं स्कॉलर नहीं बनता ज्यादा अच्छा था, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ, ठीक है। तो फजल रहमान इज अ मुनाफिक because have you seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standing hand in hand with Abu Jahl or Abu Lahab? No. Islam is a religion of principles, ठीक है। Anyway, I have to go now. जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।